So, welcome to the digital marketing webinar, and this webinar will be taken by our speaker, who is Yamini ma'am. She's an Hello expert in everyone. digital marketing. A great welcome to her from our side, and I hope it will be a successful webinar. Thank you all for joining. I hope you will enjoy the session. Thank you. Now, over to you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. All right, so let me share my screen. All right, guys, so I'll start with a brief introduction and then CQS intro. Yes, I'm from CQS, so I'll just introduce myself to you, just a brief, not more, and then CQS, and then we will move on to the digital marketing, like what digital marketing is and what the scope of digital marketing, why you should learn digital marketing, right? What's the future scope basically, and what are the career opportunities that are digital marketing. Okay, so we are going to discuss one by one. Don't worry, I'll take your questions as well, and I'll keep this webinar bilingual, right? I'll speak in Hindi as well as in English so that it would be comfortable for you. Fine. So, without wasting time, let's just start. Okay, so just confirm, are you able to see my screen clearly? Yes, ma'am. Yeah, okay. So, perfect. Let me just give you my brief intro. Let me just got this one. Okay, so here, if I talk about my profile, my name is Yamini Katara, as you already know, and I'm a digital marketing trainer at CQS Training Private Limited. CQS is an institute in Janakpuri, Delhi itself, right? We have three branches, one in Gurgaon, one in Viragadi, and the third one and the other one in Janakpuri, right? So I'm a digital marketing trainer over here. If I talk about my experience, I have more than 5 years of experience of 5 years in digital marketing domain, providing the training and to the working professionals, students, college students, and entrepreneurs as well, and just to grow their business, just to and make them understand what are the growth hacks for their business that they can apply, like digital marketing strategies, right? And uh, I'm also a NIT certified digital marketing trainer, and I have worked for so many digital marketing domains like I worked on SEO, search engine optimization, email marketing, Google Ads, and blogging as well. So there are so many domains that I have worked for, right? If you want to check my detailed profile, you can visit my LinkedIn profile, right? So here is a link. I'll also show you, don't worry, when I giving you some examples of personal branding, I'll show it to you, don't worry. If I talk about international certifications, I have more than 15 plus, yes, I would say 15 plus certifications, Google, SAMrush, and HubSpot. And if I talk about my other skills, I'm expert in HTML also, and graphics designing. If I talk about then Photoshop, yeah, and video editing, Adobe Premiere Pro, right? So this is my short profile, uh, because I think it is important to introduce to you so that if you have picture in your mind that you want to be a digital marketer, so what kind of profile should you have and what all the things that you need to inbuilt in you, right? So it was my profile. Okay, so let's start with the presentation. Fine. So I have made a presentation for you in which I have discussed few points and mentioned some points. So let's just start them. Fine. So here today's presentation will be on careers in digital marketing. ठीक है? Digital marketing में आपके careers क्या क्या होते हैं? Because see, मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग में ये मॉड्यूल्स होते हैं, ये डोमेन्स होते हैं. जैसे कोई भी हम स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं तो उसमें पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका स्कोप क्या है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, right? What's your career opportunities in that field?
तभी तो आपको स्टार्ट करोगे वहां से। मैं आपको बता रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग ये है, बट आपको समझ पता ही नहीं है कि आफ्टर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट वहां से नहीं बनेगा डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं यहाँ पे आपको कोई अंदर कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी कि पढ़ते क्या क्या। यस, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि वो मॉड्यूल्स कौन कौन से कवर होते हैं, और हर एक मॉड्यूल जो आपका होता है डिजिटल मार्केटिंग में उसका बेसिकली करियर स्कोप क्या है। ठीक है, बट पहले हम बात करेंगे व्हाई यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एंड फ्यूचर डिमांड क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, वो हम साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स कवर करके चलेंगे। राइट, whenever you have doubt you can share in chat box, otherwise जो हमारा सेशन एंड होगा उसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करूंगी। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आपका ऐसा नहीं रहेगा मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए एंड इफ देयर आर सम डाउट्स आप उनको नहीं क्लियर कर पा रहे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, डोंट वरी। ठीक है, आई विल टेक योर क्वेश्चंस इन एट द एंड ऑफ दिस सेशन। फाइन। So, okay, let's start. So, you can see we are talking about careers in digital marketing, right? So, yes, guys, it is right. Digital marketing is the most in demand skill in 2021 and beyond that. Yes, the reason is आपने अभी देखा होगा आप पोस्ट कोविड, इवन इन कोविड और कोरोना पैंडेमिक, जो बिजनेस ऑफलाइन थे उन्होंने भी क्या किया, अपना ऑनलाइन जो डिजिटल प्रेजेंस था बेसिकली वो लेके आए। ठीक है, वेदर दे आर यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया उन्होंने स्टार्ट करना यूज करना स्टार्ट किया, प्रमोशन अपना उस पर, राइट, चाहे उन्होंने सर्च इंजन को स्टार्ट किया, वट एवर द प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऑफलाइन से ऑनलाइन आना उन्होंने शुरू किया। राइट, तो वहीं से आप देख रहे हो ऑल्दो डिजिटल मार्केटिंग वाज देयर बिफोर कोविड ऑल्सो, बट पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड में तो इसका और ज्यादा आप देखोगे बूम पे ये इंडस्ट्री जाने लगी। एंड आई ऑल्सो शो इट टू यू प्रैक्टिकली, बिल्कुल ट्रेंड्स में जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे एक बूम पे इंडस्ट्री जा रही है। इसका ग्राफ आप देखोगे तो यू कैन ऑल्सो रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर यू ऑल। Even I'll say that digital marketing is a must-have skill for everyone. For everyone, yes, for students, for working professionals, for influencers, obviously, and for entrepreneurs also. तो इट इज अ मस्ट हैव स्किल। ठीक है, तो वही हम देखेंगे क्यों मस्ट हैव स्किल है, क्या स्कोप है, क्या चीज है। फाइन, राइट। So let's discuss the agenda of today's webinar. First, we will discuss about CQS introduction and what digital marketing is, benefits of digital marketing over traditional marketing, क्योंकि देखो marketing तो है दोनों। ठीक है, तो what are those differences, uh, digital marketing and traditional marketing, right? Then why digital marketing is the most in demand. Fine. Then overview of DM channels means digital marketing channels. What are those channels on which we can do digital marketing? Fine. And then careers in digital marketing means career opportunities आपके क्या क्या होते हैं. And then digital marketing trends. Because देखो अब आपको पता ही नहीं होगा 2021 में and beyond that digital marketing trends क्या हैं. तो वो जो कंसंट्रेशन है, आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, डिजिटल मार्केटिंग के कौन से डोमेन में आपको फोकस करना है, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। फाइन, तो वी विल डिस्कस अबाउट सम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2021 also, and digital marketing modules we will cover, like in one subject we have chapters. In digital marketing we have different modules, right? And you will realize that every module of digital marketing is going to benefit. Fine. So we are going to discuss that, and then in last we will discuss question and answer session. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे, आपके डाउट्स रहेंगे, वो हम क्लियर करेंगे। ठीक, so first slide is welcome to CQS training. Yes, CQS training is an institute, guys. It is in Delhi. Basically we have main branch in Delhi, but we have two more offices, one in Piragadi and second one is that is Gurgaon, right? And we provide trainings in different fields like digital marketing, graphic designing, IELTS, TOEFL for foreign education as well, for work visa, the students who are looking to go abroad. We provide IELTS and TOEFL classes for them. Also, we provide
software engineering courses, like IT courses and Python and all the new age career courses we provide here. And we have 30 plus courses that you can or anyone can choose from, right, to make their career. Right. And if I talk about our training thing, in lockdown also or in Corona pandemic, we trained actually thousand plus candidates in their profile. If someone is was interested in digital marketing, we trained that person. So we continuously contributing to the nation and society. Uh, Regarding the education that they want, right? So Kriti has raised her hand. So okay, fine. So guys, if you have सॉरी any मैम questions, सॉरी मैम गलती से हाथ हो गया सॉरी it's okay, no issues. If you have any questions, you can write down in chat box. We will take it at the end of this session. Okay, no issues. राइट. सो लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ, कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन जब हुआ था उस टाइम पे हमने काफी प्रोग्राम्स अपने रन किए थे, CSR प्रोग्राम्स, कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसमें हमने कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया था. वी हैव ट्रेन 1000+ कैंडिडेट्स ऑन डिफरेंट डोमेन्स, राइट. एंड we have the placement department also, जो कि placement में काफी help करता है. We place our candidates in MNCs and whatever the जो उनके रिलायबल रहता है बैंक में जिसको जाना है, बिकॉज वी हैव बैंकिंग एंड फाइनेंस आल्सो इन CQS. तो पूरा कुछ वहां से आपको एक जो मिशन है बेसिकली CQS का, वो है कि एक इंडस्ट्री गैप को खत्म करना, राइट. इंडस्ट्री गैप इन द सेंस स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो आता है, मींस इफ यू हैव थ्योरेटिकल नॉलेज बट यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट. तो वहां पे वो इंडस्ट्री गैप आ जाता है. बट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो क्या है, वी ऑल डू द थिंग्स प्रैक्टिकली. जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग गाइस आपका टोटल पूरा 100% प्रैक्टिकल है. पूरा कुछ भी इसमें आपका थ्योरी नहीं रहेगा कि चैप्टर है, थ्योरी आपने पढ़ लिया एंड यू आर सक्सेसफुल इन दैट. नो, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल प्रैक्टिकल. पूरा 100% इम्प्लीमेंटेशन, एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा. पूरा मार्केट रिसर्च होता है एंड एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, तो आप धीरे धीरे समझोगे जैसे जैसे मैं आपको बताते चलूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, राइट. सो it was the short intro of CQS, right? And now the main picture begins from here, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो इतनी देर से. ठीक है गाइस, मुझे बता देना बोरिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल ये सेशन, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बोरिंग नहीं है, राइट. सो डू लेट मी नो जहाँ पे भी आपको बोरिंग लग रहा हो, वी विल मेक इट इंटरेस्टिंग. फाइन. अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी चीजें कुछ दिखाऊंगी. सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके ये डिजिटल मार्केटिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, राइट. So, okay. So, anyone can tell me what digital marketing is actually? Any point coming to your mind? Digital marketing. Anyone, guys? मैम ताकि एवरीवन इजीली मार्केट, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जैसे इस पेंडेमिक में हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसके हेल्प से हम लोग मतलब शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि इस समय मार्केट कैसा है, अप्स एंड डाउन्स, ये सब मैम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इजी हो जाता है. ओके, तो ये हम किसी और जो कोई और अप्लाई कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सिर्फ हम अपने लिए यूज कर सकते हैं या फिर हम अपने लिए भी यूज करते हैं? आई मीन टू से दैट अपने बिजनेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. So anyone else want to answer this question? Although a good attempt, thank you so much for responding. Yes, guys. Anyone else? No response, huh? Okay, no issues. देखो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि होती तो मार्केटिंग है, बट इट्स digital, through digital channels. When you are promoting anything online, when you are promoting your products, right? When you are advertising your products, right?
या सर्विसेज थ्रू डिजिटल चैनल्स, तो वो कहाँ आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि मार्केटिंग आप कर रहे हो, बट जो ऑनलाइन चैनल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप इंटरनेट पे जाके अपनी कोई डिजिटल चैनल सेलेक्ट करते हो और वहां अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चैनल्स, आप कहोगे मैम चैनल्स पे डिजिटल मार्केटिंग के क्या है, तो देखो यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और यू कैन डू योर पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू सोशल मीडिया। सबसे पहला मैं डिजिटल चैनल अगर आपको बताऊं, ठीक है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आपका हो गया, जैसे कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, योर पिंटरेस्ट, ठीक है, टेलीग्राम है, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। हम कितने ज्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आपको भी पता है, राइट। तो वो क्या है, सोशल मीडिया की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए लोग डिजिटली, ऑब्वियसली जब सोशल मीडिया की डिमांड ज्यादा है, इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया की डिमांड बढ़ रही है, तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। आप देखो, लोग डिजिटली अपने ब्रांड का अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है। सर्च इंजन पे, सर्च इंजन क्या है, जिसपे हम जाके सर्च करते हैं, जैसे आपका गूगल हो गया, गूगल, बिंग, याहू, ठीक है, यूट्यूब हो गया, तो ये क्या है, आपके सर्च इंजन हैं। तो सर्च इंजन पे मार्केटिंग हो गई, ठीक है। फर्स्ट योर सोशल मीडिया, सेकंड योर सर्च इंजन। आप वेबसाइट्स के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, आपकी वेबसाइट्स बनाते हो आप, जब भी कोई भी आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है, आप अपने आपकी भी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, आपकी वेबसाइट होती है। मोबाइल एप्स के थ्रू आप क्या करते हो, अपना कोई भी बिजनेस है उसको प्रमोट करते हो, या कोई भी वट एवर इट इज, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे भी उसको आप प्रमोट करोगे, राइट। तो जो डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल चैनल्स होते हैं, इवन ईमेल्स, ईमेल्स आप देखो, आप किसी वेबसाइट पे जाके कभी सब्सक्राइब करते हो, या फिर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, जस्ट विजिट करते हो उस वेबसाइट को, देन यू स्टार्ट गेटिंग ईमेल्स, या फिर आपको ऐड दिखना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग ही तो है। आप किसी की वेबसाइट पे गए, उन्होंने आपको ट्रैक कर लिया, और ट्रैक करने के बाद वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ रीमार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब रीट्रैक कर रहे हैं आपको, आपको उनके एड्स दिख रहे हैं, आपको उनके जो प्रमोशन वाला पार्ट कर रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, राइट। सो दैट इज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो वही कॉन्सेप्ट है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ना है, कि कैसे अपने ब्रांड को, या फिर आप वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपका वर्क है जो आप ऑफलाइन करते थे उसको ऑनलाइन लेके जाना, so that you can reach to the potential audience or your target audience। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन की बात करें, वहां पे हमारा कोई टारगेट ऑडियंस नहीं होता, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग, तो वहां पे हम हमारी ऑडियंस टारगेटेड होती है। आई लेट यू नो हाउ, पूरा एग्जांपल देके, ठीक है, कैसे टारगेटिंग ऑडियंस है। सो इज इट क्लियर कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, एंड व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर डिजिटल चैनल्स? शैल आई मूव अहेड, आगे चलें? यस मैम। परफेक्ट, ठीक है। तो देखो, अभी थोड़ा सा बेनिफिट्स हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ ऑफलाइन मार्केटिंग की, ठीक है। अब देखो, ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ, इससे पहले होता था वो प्रिंट मीडिया। आपका प्रिंट मीडिया जैसे मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, ब्रॉडकास्ट जैसे टीवी है, रेडियो है, डायरेक्ट मेल हम किसी को कर रहे हैं जैसे कोई कैटलॉग्स हैं, पोस्ट कार्ड्स जैसे होते थे, ठीक है, टेलीफोन कर रहे हैं, एसएमएस मार्केटिंग हो गया, कोल्ड कॉलिंग जैसे होती थी, टेली मार्केटिंग, राइट। आउटडोर आपका होता था, आउटडोर आपकी सेल होती थी, जैसे कि आप आउटडोर मार्केटिंग कर रहे हो, राइट। दैट आर ऑल मेथड्स ऑब्सोलीट नाउ, ठीक है, कोई भी अब फायदे के नहीं। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हम होंगे जो कॉल आती है आपके पास कहीं से, तो वी पिक दैट, मतलब अगर हमारा नोन नहीं है, मतलब जैसे कहीं से आ रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आती है, अभी भी काफी कॉल्स आती हैं, या फिर कोई भी सर्विसेज के रिगार्ड आती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ठीक है, हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते, नहीं ध्यान से उसको सुनते हैं। लेकिन यही मैं बोलूँ आपको कि फेसबुक पे आप अपने फेसबुक पे हो, और वहां पे आपको कोई एक अच्छा सा एड दिखा या कोई पोस्ट दिखा, आप वहां रुकते हो, आप अटेंशन वहां पे करते हो, क्योंकि क्या है, एक मीडियम चेंज हुआ, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, आपका मीडियम है जो कि ऑब्सलीट है, अब कोई इतना ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देता, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम,
ठीक है, आपकी ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है, सो दे विल लिसन टू यू। आपको कहाँ जाके अपनी ऑडियंस को देखना है, जहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट है, जहाँ पे वो अवेलेबल हैं अभी, राइट। तो आपकी ऑडियंस कहाँ पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे। इंटरनेट पे कहाँ कहाँ, अलग अलग डिजिटल चैनल्स पे। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि अलग अलग जो डिजिटल चैनल्स हैं, कहाँ पे आपकी ऑडियंस ज्यादा है। फाइन। तो वही डिजिटल चैनल्स के थ्रू जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मेथड्स चेंज करते हो, तो वही इम्पैक्ट आ जाता है आपका ट्रेडिशनल से मतलब ट्रेडिशनल पे कोई ना इतना ध्यान देके डिजिटल मार्केटिंग पे, राइट। सो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के सारे जो मेथड्स हैं दे आर ऑब्सोलीट नाउ। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे आते हो तो देखो, वेबसाइट ऑब्वियसली आप देखोगे, छोटे से छोटा भी अगर कोई बिजनेस होगा, कोई छोटे से छोटा भी कोई भी शॉप ले लो आप, कुछ भी फूड कोर्ट या वट एवर इट इज, ठीक है, उसकी भी वेबसाइट आज के टाइम में होती है, राइट। क्योंकि वेबसाइट क्या है, आपका एज अ ऑनलाइन स्टोर वहां पे शो करता है। इफ यू डोंट हैव ए फिजिकल स्टोर, नो नीड टू वरी एट ऑल। आपको क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, वहां से अपने प्रोडक्ट्स को आप इजिली सेल कर सकते हो। फाइन। देखा एक फायदा वेबसाइट से आपको कितना ज्यादा फायदा है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाने हैं, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठा के आप दे सकते हो, दिस इज माय वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू दैट। If you want to order anything, you can directly order anything, right? So website is there. Then second is your content marketing. That is very very important guys, क्योंकि content is the king. जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, वेदर यू आर राइटिंग एनी ब्लॉग, चाहे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आप कोई क्रिएटिव्स बना रहे हो, आई मीन टू से ग्राफिक्स बना रहे हो, चाहे आपका कोई वीडियो कंटेंट है, राइट, यू आर क्रिएटिंग, यू आर मेकिंग योर वीडियो फॉर यूट्यूब। तो यूट्यूब के लिए अगर आपका वो कंटेंट इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो आपके सामने वाली ऑडियंस को नहीं लग रहा इट इज वर्थ वॉचिंग या जो भी है, ठीक है, तो वो वहां पे आप फेल हो जाओगे। बट यस, सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एडवांटेज की अभी बात कर रही हूँ, कंटेंट मार्केटिंग। अगर इफ यू हैव गुड कमांड इन कंटेंट मार्केटिंग, राइट, लाइक कंटेंट राइटिंग, प्लानिंग एंड प्रमोशन, ऑल द थ्री पार्ट्स, आई लेट यू नो इन डेप्थ, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ, तो वहां से आपको सक्सेस मिलना बहुत ईजी है। आप अपना जो भी बिजनेस है या फिर जो भी आप अभी कर रहे हो एज अ फ्रीलांसिंग या फिर जॉब, वट एवर इट इज, आप उसका एज अ कंटेंट अगर आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है, तो यू विल गेट सक्सीड इन दैट। फाइन। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मीन्स सोशल मीडिया पे आप कितने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हो, लाइक योर फेसबुक पेज के थ्रू, आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर फॉर ट्वीट्स, राइट, और पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट जिसपे इन्फोग्राफिक्स बहुत शेयर होते हैं, ठीक है। और गाइस यस, आपको मैं एक इसका फैक्ट बताऊं, पिंटरेस्ट पे आपकी जो ऑडियंस है वो फीमेल ज्यादा है रादर देन मेल। बट और अगर मैं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी बात करूं, वेदर इट्स फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या फिर आपका इंस्टाग्राम, इन सब पे आपका मेल का जो इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का जो बेसिकली एक ग्राफ बनता है, वो मेल्स का ज्यादा होता है। बट हियर इन पिंटरेस्ट फीमेल्स आर मोर, राइट। आप इसको देखना, एनालिटिक्स चेक करना, पिंटरेस्ट जब अकाउंट बनाते हो उसमें जाके यू विल गेट इट। फाइन। देन पीपीसी एंड एसईएम, ये क्या होता है, आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। मतलब गूगल पे आपने कोई एड रन किया, या फिर गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक करे, या गूगल पे अगर कोई सर्च करता है और आपकी वेबसाइट कंटेंट मिलता है, तो दिस इज द सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, सर्च इंजन मतलब गूगल, गूगल, बिंग या किसी पे भी आप कर रहे हो, तो वहां पे आपका कंटेंट रैंक कर रहा है, वेदर यू आर राइटिंग ब्लॉग, आपको कोई ब्लॉग कर रहा है, या फिर आपकी वेबसाइट जो आपकी पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वहां पे वो रैंक कर रही है। फाइन। देन ईमेल मार्केटिंग, गाइस यू कैन ऑल्सो चूज ईमेल मार्केटिंग, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि आप देखो क्या करोगे, आपका जो जिसको आप नहीं जानते उसको आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दे माइट बी फ्रस्ट्रेटेड, या बोलेगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, क्यों कॉल कर रहे हो, नंबर कहाँ से मिला, राइट। बट आप ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हो, उनको, अपने कस्टमर्स को, मतलब जो भी हैं आपके कस्टमर्स, उनको आप क्लाइंट में चेंज कर सकते हो, अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट उनको बता के, उनको सेल्स फनल में आप ऐड करके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, उनसे अपना बिजनेस निकाल सकते हो, ठीक है। देन एफिलिएट मार्केटिंग, नाम से आपको लग रहा होगा एफिलिएट मतलब
एक कमीशन बेस्ड मार्केटिंग होता है ये, राइट? लाइक यू आर रनिंग योर ओन ब्लॉग, ठीक है, आप अपने ब्लॉग्स खुद लिखते हो एंड यू हैव योर वेबसाइट, यू हैव योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे आपके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? तो आप क्या चाहते हो कि जो आपकी ऑडियंस है उनको आप कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम अ ब्लॉगर एंड व्हाट आई वांट कि जो अमेजोन पे प्रोडक्ट्स हैं सपोज, ठीक है, एंड आई राइट रिगार्डिंग होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है, होस्टिंग एंड डोमेन। सो व्हाट आई वांट कि जो होस्टिंग एंड डोमेन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनीज के, मैं उनको अपने ब्लॉग्स के थ्रू प्रमोट करूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एज अ सेलर अकाउंट काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सेलर अकाउंट एज अ सेलर मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ एफिलिएट काम कर रही हूँ। मैं उनके प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रमोट करूंगी अपने ब्लॉग के थ्रू। इफ समवन कमिंग और एनी विजिटर कमिंग टू माय ब्लॉग and click on that link of the product and purchase that product, then I'll get the commission, ठीक है। तो जब अभी मैं करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूंगी तो उसमें बताऊंगी हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज यूजफुल फॉर फ्रीलांसर्स और फॉर यू कैन से यू कैन वर्क इट ऑन पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम पैसिव इनकम के लिए, या फिर वट एवर इट इज। ब्लॉगर्स बेसिकली बहुत अर्न करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है। सो आई विल लेट यू नो इन डिटेल, डोंट वरी, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग में बेसिकली आपका क्या रहता है कि आप जो है यहाँ पे आपका जो बिजनेस है उसके लिए आप सेल्स फनल्स बनाते हैं, ठीक है। सेल्स फनल यहाँ पे आई थिंक समवन्स माइक इज ठीक है। तो क्या करते हो आप इनबाउंड मार्केटिंग में फनल्स बनाते हो। जैसे कि फनल्स इन द सेंस कि एक बार जो आपकी बिजनेस में एंटर हुआ, मतलब जो कस्टमर है एक बार जो आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज सपोज अभी नहीं किया, ठीक है, आपको जस्ट वो इंक्वायरी कर रहा है किसी चीज की, एंड व्हाट यू डिड, आपने उस कस्टमर को आपके टॉप ऑफ द फनल से उठा के बिल्कुल डिसीजन फेज तक आप लेके आ गए कि इंक्वायरी सिर्फ की थी उस प्रोडक्ट की और अब वो प्रोडक्ट आपसे परचेज कर रहा है कोई भी कस्टमर, ठीक है। सो दीज आर दी टेक्निक्स, और ये आप फनल स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे ताकि फर्स्ट टाइम कस्टमर आपका आपके पास आया वो एंड तक आपके पास रहे, डिसीजन भी ले आपसे ही प्रोडक्ट परचेज करने का, एंड देन वो रिटेन होके भी रहे, मतलब बाद में भी उसको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, दे विल कम टू यू, नॉट टू योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो इनबाउंड मार्केटिंग में आप क्या करते हो, फनल्स बनाते हो। तो आप देख रहे हो पूरा, अगर एक एक मॉड्यूल आप देखो तो स्ट्रैटेजी बेस्ड है इसमें कि किस तरह से, क्योंकि मार्केट में यही सारी चीजें यूज होनी है, किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यही सारी चीजें यूज होनी है, राइट। तो यू कैन सी कि कितना ज्यादा स्कोप आपको दिख रहा है। इवन अभी तो मैं सिर्फ आपको एक बेनिफिट इसका बता रही हूँ, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द मॉड्यूल्स उसमें आप देखना कितना ज्यादा आपको लगेगा कि यस मैम, ऑल दी मॉड्यूल्स आर आपके ऐसे हैं जो आपके काम आने वाले हैं एक एक इंडस्ट्री में, क्योंकि एक एक मॉड्यूल की वहां पे आपको पता है दो दो तीन तीन पोजीशन पे जॉब्स होती हैं, डेजिग्नेशन पे। मतलब एक मॉड्यूल अगर आपने सीख लिया तो उसके दो तीन अलग अलग डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हो इफ यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग ऑटोमेशन, तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर नाउअडेज। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप ऑटोमेशन कैसे लगाओगे। इफ आई गिव यू वन एग्जांपल ऑटोमेशन का, जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे या फेसबुक पेज पे आप जाते हो तो वहां पे साइट से आपको एक चैट बॉक्स आ जाता है, राइट। चैट बॉक्स होता है, लाइव चैट भी आप कर सकते हो। इवन व्हाट यू कैन डू, वहां पे सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द ऑटोमेटेड आंसर देयर एंड देन, ठीक है। अगर ये एग्जांपल अभी आपको चेक करना है, जस्ट गो टू सीक्यूएस पेज पे, फेसबुक का पेज सीक्यूएस ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड आप लिखोगे फेसबुक पे, वो पेज ओपन हो जाएगा सीक्यूएस का, देन यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन, दैट इज द चैट बॉट वन, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। मैं अभी आपको काफी एग्जांपल समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स, अगर चलो मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ दोनों में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लो एक कोई बिल बोर्ड है, ठीक है, बिल बोर्ड ले लो, चाहे कोई आप एक बैनर ले लो, जो कि अब मैं इस पे एक ऐसे एग्जांपल लेती हूँ कि हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है लॉन्च करना है, या फिर हमारा कोई एक नया बैच डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 5th ऑफ नॉट 5th ऑफ मार्च, आई वुड से मान लो 15th ऑफ मार्च से हमारा एक नया बैच डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट हो रहा है, ओके।
नाउ आई कंपेयर इट इन बोथ डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब मैं पहले ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग में ठीक है, मुझे वो बैनर है उसका पहले मुझे कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई एम गुड इन कंटेंट राइटिंग, मैं उसका कंटेंट खुद से लिख के प्रिपेयर कर सकती हूँ। देन मुझे उस कंटेंट को प्रिंट कराने के लिए, मतलब एडवर्टाइज कराने के लिए, पहले वो एक जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो देखना पड़ेगा कि कोई मुझे प्रिंट करके दे दे इसको, फाइन। देन जहां पे मुझे उस बैनर को लगाना है, पहले वो मुझे लोकेशन देखनी होगी, ठीक है। देन वहां पे मुझे वो, ऑब्वियसली लोकेशन मेरी तो नहीं होगी, मुझे वो रेंट पे लेनी पड़ेगी। लाइक इफ आई वांट टू कीप दैट बैनर फॉर 10 days 15 days, ठीक है, तो पहले मुझे वो लोकेशन देखनी है, फिर वो लोकेशन का मुझे वहाँ प्राइस देना पड़ेगा कि 15 days के लिए मुझे अपना बैनर यहाँ पे रखना है, राइट। उसके बाद मुझे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ताकि जाके ताकि वो उस बैनर को वहां पे वो पुट कर सके, ठीक है। उसके बाद भी देखो, इतनी मेहनत के बाद भी, मतलब इतना टाइम मेरा लग गया, इतना पैसा यहाँ पे वेस्ट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद भी मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि ये जो मैंने बैनर लगाया है राइट ऑडियंस को मेरे को अप्रोच में कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई मार्केटिंग एनालिसिस नहीं है यहाँ पे, कोई रियल टाइम मेजरमेंट के टूल्स नहीं है ताकि मैं अपने कस्टमर्स से इंटरेक्ट कर पाऊँ, टू वे कम्युनिकेशन हो पाए, या रियल टाइम में मेरा कोई इंटरेक्शन हो पाए, या फिर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ पाऊँ, ठीक है। देयर आर नो टूल्स एट ऑल। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट किया, आपका पैसा वेस्ट किया, and you are not able to succeed, or you are not able to find your marketing uh, ऑडियंस, राइट। बट यही मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग में यू आर द ओनली वन, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ग्राफिक्स आप खुद से सीखोगे बनाना। ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग में इतना होता है कि यू कैन क्रिएट योर ओन ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स आपने बना लिए, यू आर गुड इन कंटेंट राइटिंग, कंटेंट है, ग्राफिक्स तैयार है आपके पास, आपके फ्री का स्पेस है, मतलब आपकी सोशल मीडिया आपके पास है, गूगल अकाउंट आपके पास है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको पुट करना है, पोस्ट कर सकते हो, आप एड रन कर सकते हो, ठीक है। और अपनी ऑडियंस को टारगेट करके, कि सपोज मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस, जैसे राइट नाउ आई मीन जनकपुरी, ठीक है। तो व्हाट आई वांट कि मेरा जो बैच है वो ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, तो विद इन 5 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स की रेंज में जो लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं को मेरा एड दिखेगा। एंड सपोज दिस कोर्स इज फॉर स्टूडेंट्स ओनली, तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट्स को ही टारगेट करूंगी, राइट। मैं एज ग्रुप सेलेक्ट करूंगी कि 18 से लेके 25 ईयर्स तक के लोगों को ही ये मेरा एड दिखे, तो सिर्फ आपको ही दिखेगा, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हो, और इंटरेस्ट बेसिस पे भी इवन मैं ये टारगेट करूंगी कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली ज्यादातर स्टडी मटेरियल मतलब सर्च करते हैं, ठीक है, फेसबुक के कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसपे उनका एंगेजमेंट रहता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड वाले लोग होंगे, जो ऐसे पोस्ट पे एंगेजमेंट उनका ज्यादा रहता होगा, जो गूगल पे हमेशा इस टाइप की चीजें सर्च करते होंगे, या फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वट एवर इट इज, तो वहां पे उन लोगों को ही मेरा एड दिखे। मैं ऐसी ऑडियंस को अपना एड नहीं दिखाना चाहती जो इंटरेस्टेड ही ना हो, राइट। तो मैं क्या करूंगी, पूरा टारगेटिंग कर सकती हूँ यहाँ से। इवन व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑल्सो मेजर द परफॉर्मेंस, मैंने अभी अपना एड रन किया या पोस्ट डाला तो इस पे कितना रीच जा रहा है, कितने लोगों तक ये मेरा पोस्ट या एड पहुंच रहा है, ठीक है। और कितने लोग बेसिकली एंगेजमेंट है, कितने लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, या फिर कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो व्हाट आई कैन डू, आई हैव डिफरेंट टूल्स, इनके थ्रू मैं रियल टाइम मेजरमेंट कर सकती हूँ अपने डिजिटल जो भी मैंने कैंपेन रन किया है या कोई भी पोस्ट किया है उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्या है, इसीलिए ऑब्सलीट ऑफलाइन मार्केटिंग होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जब इतना अच्छा ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का, तो व्हाई शुड वी ऑप्ट फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी ऑडियंस टारगेट हो रही है, आपका बजट जो है विद इन लिमिट रह रहा है, आप अपना कंटेंट जो है पब्लिकली शो करा पाते हो, ठीक है, चाहे जितने लोगों को आप चाहो तो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप रीटारगेटिंग कर सकते हो, मतलब एक बार आपका एड जिसमें देखा, आप चाहते हो कि मेरा जो भी एड है उसको देख के मान लो वेबसाइट पे कोई आया, तो वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं, या फिर वो डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं, तो मैं बाद में मैं जो भी ऐड बनाऊं, कभी भी जो भी ऐड बनाऊं फेसबुक या गूगल के थ्रू, उनको मेरा ऐड दिखे, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली रिटेन योर कस्टमर्स, ठीक है। तो वहां से अपना बिजनेस आप निकाल रहे हो, ठीक है।
So now I think I hope you are able to understand the difference between traditional and digital marketing and why everyone is switching towards the digital marketing. ठीक है, यहाँ से इतना समझ आया, आगे चलें? Yes, ma'am. Everyone, guys? Yes, ma'am. Okay, perfect. So what you can see benefits of digital marketing. ठीक है, अब देखो वही जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, हायर रेवेन्यूज। ऑब्वियसली हायर रेवेन्यूज आपके जनरेट होते हैं क्योंकि वहां पे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी कॉस्ट हर एक चीज के लिए आपको देनी पड़ रही थी, बट हियर यू आर सेविंग मनी। ठीक है, इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव। एंड ऑब्वियसली जब आपकी एक ब्रांड होगी, आपकी वेबसाइट भी है, आप सोशल मीडिया पे हो, आप गूगल पे हो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, आपकी ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो जो है बिल्ड होगी यहाँ से, राइट। एंड ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी लीड्स की, मतलब जो आपकी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो आपकी जो कंटेंट की परफॉर्मेंस है, बेसिकली जो आपका बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू, कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, देन यस द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप compete कर सकते हो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, बिकॉज वी हैव सो मैनी टूल्स जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कैसी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट में किस टाइप की चीजें वो यूज कर रहे हैं एंगेजमेंट के लिए, यूजर उनकी वेबसाइट पे कितने जा रहे हैं, ट्रैफिक कितना जा रहा है उनकी वेबसाइट पे। ठीक है, मतलब विजिटर्स कितने जा रहे हैं उनके, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज दे आर यूजिंग, राइट, कितने बैकलिंक्स हैं, क्या है, पूरा सब कुछ हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, जैसे मान लो मुझे अपनी वेबसाइट रैंक करानी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, तो आई कैन ऑल्सो सी कि जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन है, एंड आई कैन डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिसर्च, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ से जब यही पता चल जाएगा आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है और आप उनको रिसर्च करके उनकी स्ट्रैटेजी समझ जाओगे, तो ऑब्वियसली यू कैन कम्पीट विद देम। ठीक, रियल टाइम रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, बिल्कुल हमें रियल टाइम रिजल्ट्स मिलेंगे, जो भी हमारा कस्टमर से इंटरेक्शन हो रहा है उसके थ्रू वी कैन गेट इन टच विद देम, और पूरा रियल टाइम वहां से हम अपना कंपनी और जो हमारा बिजनेस है उसको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, so it was the benefits of digital marketing over traditional marketing. Now we will talk about why digital marketing, क्योंकि क्वेश्चन माइंड में आता है, ठीक है हमें समझ आ गया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे बेनिफिट तो है, लेकिन ये हम कैसे एक प्रैक्टिकली समझ पाए चीजों को कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना ज्यादा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो वही चीजें हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो फॉर दिस आई एम शेयरिंग माय जो मेरा गूगल का बेसिकली गूगल ट्रेंड्स है वो मैं दिखा दे रही हूँ एक बार आपको। गाइस प्लीज लेट मी नो, यहाँ से आपको गूगल की स्क्रीन दिख रही है, गूगल वाली? Yes, ma'am. आई हैव रिटन ओवर हियर गूगल ट्रेंड, दिख रहा है ना आपको? Yes, ma'am. ओके, सो देखो यहाँ से मैं आपको एक लॉजिकली दिखा रही हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या डिफरेंस है बेसिकली, और लोग क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा बूम पे है एंड एवरीवन वांट्स टू लर्न दैट। तो देखो डिजिटल ट्रेंड्स इज अ टूल, एक्चुअली इट इज अ टूल ऑफ गूगल, जिसपे आप ये देख सकते हो कि अभी उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या सर्चेस चल रही हैं इन country also, in city also, in particular region, आप सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बेसिक से। लेट मी चेंज इट टू इंडिया फर्स्ट। ठीक है, मैं अभी इंडिया यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू चेक कि अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है बेसिकली वो किस तरह से ट्रेंड में है। ठीक है, सो आई हैव रिटन ओवर डिजिटल मार्केटिंग ओवर हियर, एंड यहाँ से अगर आप देखो तो ये पास्ट 12 मंथ्स का आपको दिखा रहा है। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द डेज, लाइक 30 डेज का देखना है आपको, 90 डेज का देखना है, तो लेट्स सेलेक्ट इट 90 डेज। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ काफी आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपको दिख रहे हैं, बट येस द बेस्ट थिंग इज दैट कि इसको लोग सर्च करें। यहाँ पे देखो एकदम स्पाइक आप देख रहे हो, ठीक है, फेब में। अगर मैं 12 मंथ्स का दिखाऊं तो आप देखना जब कोविड आया था तो उस टाइम पे कितना ज्यादा यहाँ पे ग्राफ में
आप देखो यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो मार्च में, ये देखो यहाँ से एकदम से देखो कितना स्पाइक था, यहाँ पे देखो ये फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। इवन दिल्ली में देखो, अगर आप दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, हरियाणा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस रीजन में भी, सब रीजन जो है वहां पे भी लोग सर्च कर रहे हैं। इवन क्या क्वेरी है, रिलेटेड क्वेरी क्या कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। इवन इफ आई वांट टू कंपेयर इट विद ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो देखो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग कोई भी नहीं सर्च करता। मैं आपको गूगल पे भी इसका रिजल्ट दिखा दूंगी कि किस तरह से सर्चेस हो रही हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर 69 जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्चेस हैं, तो तब जाके एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सर्चेस है, अगर आप देखो तो, ठीक है, यहाँ से। और अगर यही रिजल्ट्स मैं आपको गूगल पे यहाँ पे दिखाऊं, तो देखो गूगल पे सपोज मैं टाइप करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो देखना कितने लोग इसको सर्च करते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यू कैन सर्च अकॉर्डिंगली जो भी आपकी क्वेरी है। सो यू कैन सी ओवर हियर इट इज सिलेक्टेड इंडिया। इंडिया में अभी मंथली सर्चेस जो डिजिटल मार्केटिंग की हो रही है, दैट इज 2,46,000, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि डिजिटल मार्केटिंग कितना लोग सर्च करें। इवन इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो देखना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कितने लोग यहाँ से सर्च कर रहे हैं, 74,000, ठीक है। 74,000 लोग हैं जो पर मंथ सर्च करते हैं इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, जहां जहां गूगल बेसिकली ऑब्वियसली हर एक कोई गूगल यूज कर रहा है, बिकॉज गूगल इज द नंबर वन सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आफ्टर दैट यूट्यूब इज देयर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सर्चेस आप देख रहे हो, मतलब 1 सेकंड से कम के टाइम में कितनी ज्यादा सर्चेस हो रही हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे। फाइन। अगर मैं यही बात करूं आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, सो सी यहाँ पे अगर आप देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिर्फ इतनी सर्चेस हैं, ठीक है। कहाँ लैक्स में वहां हम बात कर रहे थे, कहाँ ये 3,000, अप्रोक्सीमेट 3,000, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन की ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। इवन हम ये भी करके देख सकते हैं, जैसे कि कोई और कोर्स के बारे में भी देखना है, जैसे कि हाउ अदर कोर्स आर डूइंग, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड लेट मी कंपेयर इट विद कुछ ऐसा कोर्स जो कि मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस हम करके देख सकते हैं, या फिर आप पाइथन करके देख सकते हो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो यहाँ से टर्म की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कोर्स नहीं मैंने मेंशन किया, मैंने यहाँ पे टर्म की बात की। तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑन द टॉप, ठीक है, ये देखो। बट यस, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ पाइथन से, तो ऑब्वियसली आई थिंक पाइथन ज्यादा होगा, क्योंकि पाइथन आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब हर एक स्कूल में भी मैंडेटरी हो गया है। तो वहां पे अगर आप देखो तो पाइथन का आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च फॉर एनी टॉपिक, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, क्या नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स में, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लिए हैं कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द गूगल ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग इज रियली डूइंग वेल, ठीक है। मतलब सर्चेस, अगर गूगल सर्च की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में सर्चेस अगर आप देखो मंथली इंडिया में काफी अच्छी है, ठीक है, लोग सर्च करते हैं, राइट। एंड अगर मैं स्कोप की बात करूं, ठीक है, कि चलो ये तो मैं सर्चेस के लिए कर रही हूँ, बट हमारा स्कोप क्या है बेसिकली, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो व्हाट इज द स्कोप, ठीक है। सो you can see that by 2021 experts in this area will be most influencing and with good reason to have more than 20 lakhs jobs. Yes guys, आपको पता है डिजिटल मार्केटर की इतनी डिमांड है कि अभी 2021 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी मोर देन 20 lakhs जॉब, बिल्कुल होंगी, ठीक है। ये तो जॉब्स की बात हो रही है, लेकिन अभी मैं जब करियर्स की बात करूंगी उसमें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ जॉब ही ऑप्शन नहीं होता। इफ यू हैव गुड आइडिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है।
एज अ आप इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, जो कि मैं आपको करियर्स में अभी बताऊंगी, ठीक है। सो यू कैन सी कि आने वाले टाइम में आपकी जॉब्स का स्कोप बहुत ज्यादा है इसमें। इवन इवन ए स्मॉल शॉप जो होगी उसका भी आप वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो चाहे वो उसकी वेबसाइट हो, चाहे वो गूगल में लिस्टेड हो। गूगल में लिस्टेड कैसे, जैसे कि लेट मी टेल यू वन थिंग, एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिखाती हूँ। इफ यू सर्च फॉर लाइक आई मीन जनकपुरी, ठीक है, और मैं अगर सर्च करती हूँ यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, फाइन, मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट कर लेती हूँ, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग द लोकल रिजल्ट्स, कि आपके लोकल में जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली, जो आसपास आपके डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट हैं, यू कैन सी द रिजल्ट्स। एंड लोकली में बेसिकली क्या दिखाता है आपका, विद इन 10-15 किलोमीटर्स की रेंज में दिखाएगा, बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर लोकल एसईओ, लोकल लिस्टिंग का, क्योंकि गूगल में मैंने क्या कर रखा है, अपनी प्रोफाइल को लिस्ट कर रखा है, ठीक है। मीन्स आई हैव डन इट फॉर माई पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप देख रहे हो एज अ डिजिटल, अब जरूरी नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हो, कि कोई बिजनेस है आपका या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तभी डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। नो, इट्स फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो। सपोज यू आर सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है, या फिर कोई और प्रोफेशन है आपका, एंड जब तक आपको डिजिटल स्किल्स नहीं आएंगी, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाओगे, तो आपको लोग जानेंगे कैसे कि यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, ठीक है। तो अपने आप के प्रमोशन के लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड माय नेम ओवर हियर, I have just written digital marketing trainer and consultant, then you can see my profile over here. Okay. So when someone is looking for digital marketing trainer, they can see my profile. I like this way I am ranking on 5-6 more keywords. I think I'm also ranking on business growth consultant. So you can see again my profile is ranking number 1 on business growth consultant, ठीक है। अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर करती हूँ या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट करती हूँ, तब भी आप देख सकते हो माय प्रोफाइल इज कमिंग ऑन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए आप जो है अपनी प्रोफाइल को रैंक करा सकते हो। इवन यहाँ पे आई डोंट हैव माय वेबसाइट राइट नाउ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। हो सकता है होप सो नेक्स्ट वेबिनार तक इट विल बी एक्टिव एंड विल बी रैंकिंग फॉर दीज कीवर्ड्स। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो रैंकिंग फैक्टर्स आ रहे हैं आपके, ऑब्वियसली जब ये यहाँ पे शो हो रहे हैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए, व्हेन समवन क्लिक्स ऑन देम, ऑब्वियसली इनका बिजनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी किस बेसिस पे ये यहाँ पे रिजल्ट्स जो है शो हो रहे हैं, फाइन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो वी कैन सी दैट ग्रोथ जो रेट है वो मोर देन 10.5% है, जो कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे जो खर्च हो रहा है, बेसिकली जो कंपनीज खर्च करती हैं अपने डिजिटल प्रमोशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आप देखो तो 10.5% दैट इज 25,000 करोड़। इंडिया की ही बात कर रहे हैं हम, इंडिया में ही इतना पैसा खर्च प्रेडिक्टेड है कि कंपनीज जो है इतना खर्च करेंगी। इवन इससे भी ज्यादा ये बजट जा सकता है, दैट इज मतलब प्रीवियस से भी जैसे कि अगर आप 2020 की बात करें तो 2021 में ये जो ग्रोथ रेट है बेसिकली ये इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हर एक कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना चाहेगा। ऑब्वियसली दे वांट कि उनकी जो बिजनेस है उसको एक डिजिटल मार्केटर जो है आगे लेके जाए, तो ऑब्वियसली वहां पे डिजिटल मार्केटर की जॉब्स की रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो स्कोप क्या है कि भाई पूरा आपका 20 लाख जॉब्स आपके प्रेडिक्टेड हैं। इवन ये जॉब्स की बात कर रहे हैं, अभी हम करियर्स की बात करेंगे, उसमें मैं बताऊंगी एज अ फ्रीलांसर आप कैसे काम कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं, फाइन। देन व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, द सेम क्वेश्चन रिमेन्स ओवर हियर। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। अगर ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये है इंटरनेट यूजर्स का,
ठीक है, 2015 से 2023 का ये ग्राफ है, अगर आप देखो कॉन्टिन्यूसली इट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़ेगी, मतलब सोशल मीडिया कंजप्शन ज्यादा होगा। सोशल मीडिया हो गया आपका, सर्च इंजन हो गया, गूगल पे लोग ज्यादा होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली जब आप प्रमोशन करोगे डिजिटल चैनल्स पे तो आपका बिजनेस भी ग्रो वहां से होगा, आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वहां से भी होगी। ठीक है, तो इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ेगा। ठीक, यहाँ से कुछ और आप देख सकते हो, जैसे कि दिस इज बूमिंग एंड मोर देन 30% के रेट से ये इंक्रीज होगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है बेसिकली, वो हमने एडवर्टाइजिंग की बात की थी कि इंडिया में इट्स एक्सपेक्टेड कि जो एडवर्टाइजिंग है उसके लिए 10.5% की ग्रोथ है, कि एडवर्टाइजमेंट इतना होगा, बट जरूरी नहीं कि हम एड रन करें, हम ऑप्टिमाइजेशन वे भी तो कर सकते हैं। जैसे हमने कोई पोस्ट शेयर किया, वो पोस्ट हमारी वायरल हो रही है, राइट, तो वो मेथड्स भी हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगर आप देखो तो ये जो बूम है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का, दैट इज बूमिंग मोर देन 30% रेट एवरी ईयर। ठीक है, ईयर बाय ईयर अगर आप देखो तो 30% का इसमें ग्रोथ है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। ठीक, फाइन, तो ये रहा आपका स्कोप, और आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, बेसिकली बेनिफिट्स डिजिटल मार्केटिंग के क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट किसी का? No, ma'am. Okay, perfect. Right, so let's just discuss about some more digital marketing channels. ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स बेसिकली क्या होते हैं, और जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं वो बेसिकली क्या हैं। तो देखो, बेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव 2 डिजिटल मार्केटिंग चैनल जिस पे मोस्टली लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग अपना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भी कोई भी कंपनी अगर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रही है तो वो 2 चैनल्स हैं जिसपे सबसे पहले करती है अपना डिजिटल मार्केटिंग। ऑल द वेबसाइट इज देयर, यस, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, कि आपका वेबसाइट तो मस्ट है हर एक चीज के लिए, बट जो स्टार्ट करता है वो करता है आपका सोशल मीडिया से। ठीक है, और सर्च इंजन मतलब गूगल, विंग, याहू, तो बेसिकली हम गूगल ही सबसे मेन प्रायोरिटी में रखते हैं, तो गूगल हो गया। और सोशल मीडियाज में आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ठीक है, ट्विटर है, आपका पिंटरेस्ट है, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस, यस, व्हाट्सएप बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप बट इट इज व्हाट्सएप बिजनेस, क्योंकि उसमें आप अपने कैटलॉग्स वगैरह बना के आपके जो कनेक्शंस में लोग होंगे वो आपको आपके जो प्रोफाइल है रहेगी उस पर आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको देख सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एक ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट आप देख रहे हो, एक देख रहे हो मार्केटिंग। ठीक है, दोनों में देख रहे हो, सर्च इंजन में भी एंड सोशल मीडिया में भी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो देखो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे आप कोई बजट नहीं लगा रहे हो, मतलब कोई एक कैंपेन आपने नहीं रन किया कि आपने एक टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट की, उस पर आप कोई पैसा लगा रहे हो, कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके, जैसे आपको क्या करना है, एक वीडियो है उस पर व्यूज लेके आने हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, सिंपली उस वीडियो को पब्लिश किया और वहां से जो ऑर्गेनिकली, मतलब विदाउट पेइंग एनी अमाउंट, ऑर्गेनिकली आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है, जो एंगेजमेंट आ रहा है, दैट इज थ्रू ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली जो ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स हैं वो हम बोलते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सपोज, ठीक है, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स ओवर हियर। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आप देखो, एड इज नॉट रिटन ओवर हियर, ठीक है, एड नहीं लिखा हुआ, देखो ये रिजल्ट्स जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, मतलब जिन लोगों ने या तो अपना ब्लॉग बनाया है किस कीवर्ड को टारगेट करके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, या फिर जिन्होंने अपनी वेबसाइट है, मतलब उनका कोई पेज है वेबसाइट का, कोई भी वेब पेज, और या फिर उनका कोई ब्लॉग लिखा है उन्होंने, वो रैंक कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, एंड दे हैव नॉट स्पेंड एनी मनी। ठीक है, ये किसके उससे हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ठीक है, SEO मतलब सर्च इंजन और O मतलब ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO क्या है, आपका ऑर्गेनिक होता है, जिसमें आपको कुछ भी बजट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब ये अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर एड दिख रहा है आपको, एडी, यहाँ से देखो ये एड है, राइट। तो ये किसके बेसिस पे हुआ है, ये हुआ है आपका गूगल एड्स, मतलब आप एड रन कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब सर्च इंजन पे आके आप मार्केटिंग कर रहे हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑडियंस सिलेक्ट की होगी कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर ये कीवर्ड टाइप करें, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड टाइप करें तो मेरा एड वहां पे ट्रिगर हो गूगल के फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये मार्केटिंग से होता है। तो ये तो एक टाइप का एड आप यहाँ पे देख रहे हो। इसी तरह से बहुत सारे आपके आप डिस्प्ले एड बना सकते हो खुद से। ठीक है, डिस्प्ले एड मतलब इमेज के फॉर्म में आपने ऐड देखे होंगे, जैसे कि कई वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ बैनर ऐड होते हैं। ठीक है, साइड बार में आपने एड्स देखे होंगे इमेज के फॉर्म में जो होते हैं, दीज आर योर डिस्प्ले एड्स। शॉपिंग एड्स होते हैं, जैसे कि मान लो गूगल पे आके कोई लिख रहा है बाय शूज ऑनलाइन, सपोज आई हैव रिटन ओवर हियर, तो आप यहाँ देख लो ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, दीज रिजल्ट्स आर शॉपिंग एड्स, जो कि आप बना सकते हो शॉपिंग एड्स। ठीक है, जो कि आपके गूगल में यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब तो यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, कई बार यूट्यूब पे भी शॉपिंग एड्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये सब एड्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाना सीखोगे, गूगल एड्स। ठीक है, वीडियो एड की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हो तो वहाँ कुछ स्किपेबल एड्स आते होंगे, कुछ नॉन स्किपेबल एड्स होते होंगे, राइट। कुछ इमेज के फॉर्म में नीचे एड आ जाता होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वीडियो एड्स, जो आप खुद बनाओगे, अपने आप सीखोगे कि कैसे ये गूगल एड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है मार्केटिंग में, जहां पे आप कोई एड बना रहे हो, कोई प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, बाय स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ बजट, और वहां पे कोई अपनी ऑडियंस को टारगेट करके, तो वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हुई। सर्च इंजन मतलब ऑप्टिमाइजेशन, जो एसईओ होता है, मतलब बिना कुछ स्पेंड किए ऑर्गेनिकली आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, तो वो आपका एसईओ होता है। जहां पे आप एड रन करते हो वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, राइट। एंड सोशल मीडिया में वही सेम है। सोशल मीडिया में अगर कोई पोस्ट है सिंपल, तो वो ऑप्टिमाइजेशन में, अगर आप एड रन कर रहे हो, ठीक है, एड जब भी आप फेसबुक, जब कभी भी आप देखना एक बार, तो जो एड होता है ना वो स्पॉन्सर्ड आ जाता है नीचे लिखा हुआ, जो जब भी वो एड होगा तो, ठीक है, स्पॉन्सर्ड आ जाएगा। वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है बेसिकली, जब आप मार्केटिंग करते हो। ठीक है, तो both these concepts are clear, optimization wala and marketing. Any doubts, guys? नो मैम। मैम बोलो। मैम, जब भी आप सर्च कर रहे हो ऊपर आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक, हाँ, सीपी। CPC, हाँ हाँ, ये कैसे मैम आया? यस मैम। ओके, देखो इसके लिए आप क्या करो, टूल यूज कर लो। द टूल आई एम यूजिंग राइट नाउ इज उबर सजेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, इस उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन को आप क्या करो, आप अपने गूगल में इसको आप जो है ऐड कर लो, क्रोम में ऐड कर लो। वंस यू एड इट, तो देखो यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एडेड इट, इसीलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है। एंड whenever you want to search anything, तो देखो यहाँ पे जैसे कि आप सर्च करने जाओगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपके एक्सटेंशंस में ये शो होगा, यू नाम से देखोगे आप, ऑरेंज कलर का एक आइकन आ जाएगा यू। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे कि मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखूं, तो देखना इसका कितना मंथली सर्च हो रहा है, ये भी आपको दिखा देगा। और इसका कॉस्ट पर क्लिक कितना है, मतलब अगर आप एड रन करोगे इस कीवर्ड के लिए, तो वो आपको कितना पर क्लिक पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इवन यू कैन ऑल्सो सी मोर एनालिटिक्स थ्रू दिस टूल। जैसे कि यहाँ पे देखो तो सर्च वॉल्यूम दिखाएगा आपको, एंड देन सीपीसी दिखाएगा, एंड एसडी। अब ये एसडी क्या है? एसडी है एसईओ डिफिकल्टी। अगर मैं ये सोचूं कि इस कीवर्ड को लेके मुझे ब्लॉग लिखना है और मेरा ब्लॉग अगर मैं रैंक कराऊंगी तो
व्हाट इज द वो एक कंडीशन जो होती है वो क्या रहेगी कि मेरा ब्लॉग रैंक करेगा जल्दी या नहीं करेगा, क्योंकि एसईओ है, एसईओ विल टेक सम टाइम टू रैंक योर वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीका है, ऑर्गेनिक तरीके से आप करते हो। तो इट इज 27, दैट इज रियली गुड। जब ध्यान रखना, जब भी आपका एसईओ डिफिकल्टी यहाँ पे 40 है या 40 से कम है, तो आप जल्दी रैंक करोगे उस कीवर्ड के लिए। अगर यही 40 से ज्यादा चला गया, तो वहां ये समझना आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, वहां थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए रैंक कराना। तो इसीलिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप बिगिनर हो, अपना ब्लॉग लिखना आपने स्टार्ट किया है, तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करो। मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब जिसमें 4-5 वर्ड्स मिला के आपका एक कीवर्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, what is digital marketing strategy, okay, what is digital marketing in SEO। तो यहाँ पे देखो ये SEO डिफिकल्टी बहुत कम है, इस पे हम इजीली रैंक कर सकते हैं अगर हम ब्लॉग लिखते हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो देखना डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च करता है तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा, सीपीसी भी ज्यादा है, और इवन SEO डिफिकल्टी भी इसका बहुत ज्यादा रहेगा। वेट, इट इज कमिंग आउट। ये देखो, अब देख लो एसईओ डिफिकल्टी कितना है, 58 है, जो कि बहुत ज्यादा है। एज अ बिगिनर अगर आप सोचो कि पहला ब्लॉग सिर्फ जो प्राइमरी कीवर्ड है आपका वो डिजिटल मार्केटिंग ही आपने लिया है, तो यहाँ रैंक करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो दीज ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ एसईओ। एक्चुअली जब हम एसईओ करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से अपनी वेबसाइट को हमें रैंक कराना है, तो वहाँ इस चीज को हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, गॉट इट, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया? यस मैम। परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज है, कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया है कि आपको कंटेंट अपना बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, कंटेंट राइट करना है। अब यहाँ मुझे आप बोलोगे मैम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी इतनी अच्छी नहीं है, वी आर नॉट गुड एट राइटिंग। कम्युनिकेशन छोड़ो, वी आर नॉट गुड एट राइटिंग, ओके। तो मैं बोलूंगी नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज वी हैव सो मेनी टूल्स जिनके थ्रू हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बट यस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिखा हुआ कंटेंट आपको मिल जाएगा, यू नीड टू गिव योर ओन एफर्ट्स ऑल्सो। बट हाँ, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंटेंट को राइट कर सकते हैं। एंड देन कंटेंट प्लान, मतलब कंटेंट प्लान का मतलब क्या आ रहा है कि राइट चैनल पे आपका राइट कंटेंट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इन्फोग्राफिक्स की, तो वो कहाँ जाना चाहिए, पिंटरेस्ट पे आपका। अगर मैं बात करूं वीडियो की, जैसे आपका कोई वीडियो के फॉर्म में कंटेंट, तो वो कहाँ जाना चाहिए, जो वीडियो शेयरिंग चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब है वहां पे। ठीक है, एंड प्रमोशन, आप प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हो, अपना जो राइट कंटेंट है उसके लिए आपकी राइट ऑडियंस सिलेक्ट है कि नहीं है, राइट, वो चीज आपको देखनी है यहाँ पे। तो आपका कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि आपका राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से लेके प्रमोशन तक का पूरा प्लान। मतलब आप कंटेंट कैलेंडर भी कैसे बना रहे हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे सपोज आपको पोस्ट कोई शेयर करना है, बट उससे पहले आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि आपके इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है, प्रीवियस जो पोस्ट कर रखे हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे लोग कितने टाइम एंगेज होते हैं, या फिर किस टाइप के पोस्ट पे एंगेजमेंट ज्यादा आ रहा है, कौन से डेज में आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाना है। ठीक है, मतलब पूरे इंसाइट्स और जो एनालिटिक्स होते हैं उनको चेक करके उसके बाद ही आप अपने कंटेंट स्ट्रेटजी बनाओगे बेसिकली। ठीक है, एंड देन एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया आपको, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है गाइस, ये ब्लॉगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं क्या चाहती हूँ कि मैं एक पूरा ब्लॉग्स जैसे लिखती हूँ, सपोज आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एंड आई राइट अबाउट व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, एक टूल है गाइस जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग, या इससे रेलेवेंट मैं क्या करती हूँ, अपने ब्लॉग्स लिखती हूँ। या फिर टॉप 10 टूल्स, टॉप 10 डिजिटल ईमेल मार्केटिंग टूल्स राइट इन 2021। तो मैं क्या करूंगी, अपना ब्लॉग्स लिखूंगी और वहां पे जो भी प्रोडक्ट मुझे प्रमोट करना होगा उस प्रोडक्ट का मैं लिंक दूंगी। ठीक है, मेरे विजिटर्स होंगे, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, ऑब्वियसली मेरे ब्लॉग को पढ़ रहा है, दे हैव ट्रस्ट इन मी, क्योंकि मैंने उनको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दिया है हमेशा से। ठीक है, एक ट्रस्ट मेरा जनरेट हुआ है, ट्रस्ट बना है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, सॉरी गाइस, परचेज दैट प्रोडक्ट, और फिर वहां से मुझे क्या होगा, कमीशन मिलेगा, राइट। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्कोप है गाइस इसमें। आप इवन यू कैन डू एज अ फ्रीलांसिंग जॉब्स आल्सो, यहाँ पे अपना खुद का एक
पैसिव इनकम के लिए, जैसे कि आपका जॉब चल रहा है, दैट्स ओके, बट आप साइड बाय साइड एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ईमेल मार्केटिंग। अब देखो ईमेल मार्केटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ऑब्वियसली कॉल सब इतना ज्यादा नहीं रहा कि आप रैंडमली किसी को भी ऐसी कॉल कर दे रहे हो विदाउट नोन, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ से, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे आपने एक फॉर्म लगा रखा है, एंड दैट फॉर्म कलेक्ट्स द डिटेल्स ऑफ द साइनअप्स, जो भी साइनअप आप करा रहे हो, या फिर मैं सपोज एक फॉर्म लगा रही हूँ, वहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है वो मैं दे रही हूँ, बुक योर फ्री डेमो, ठीक है। और वहां पे मैंने इंफॉर्मेशन आपकी क्या कलेक्ट की, नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, राइट। आपने वो इन्फॉर्मेशन दी, आपका डेमो वहां से बुक हो गया। या फिर ब्रोशर डाउनलोड का भी मैं कॉल टू एक्शन दे सकती हूँ, वहां से आपने ब्रोशर डाउनलोड किया। लेकिन मैं ये लीड बेकार तो नहीं जाने दूंगी। व्हाट आई डू, मेरा जो ईमेल मार्केटिंग वाला टूल होगा उसमें ये पूरी लिस्ट बनती चली जाएगी। जैसे नया कोई सब्सक्राइबर आएगा, फिर से वो वहां पे उसका डिटेल्स अपने आप से इंटीग्रेट हो जाएगा। देन अब देखना मैंने यहाँ पे क्या सेटिंग्स कर रखी हैं, क्या ऑटोमेशन लगा रखा है, कि जैसे ही कोई फर्स्ट सब्सक्राइबर आता है, या जो भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे और वो साइन अप कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको तुरंत एक वेलकम ईमेल चला जाए इमीडिएटली। ओके, वेलकम ईमेल चला गया, ठीक है। ऑब्वियसली आपने भी देखा हो, कई बार आपके पास भी आता है, थैंक यू फॉर साइन अप, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, इस तरह से एक थैंक यू मैसेज चला जाए या वेलकम ईमेल चला जाए, ठीक है। फिर 2 दिन बाद एक आपने पूरा एक सीक्वेंस ऑफ ईमेल बना के रखा है कि पहला जो ओवरव्यू का जो चैप्टर है, या ओवरव्यू का, मान लो आपने कोई सीरीज लेसन बना रखे हैं, तो ओवरव्यू का फर्स्ट लेसन आपका दूसरे दिन चला जाए। फिर आपने फनल इस तरह से बना के रखा है, ऑटोमेशन लगा के रखा है, कि अगर उस ईमेल को कोई ओपन करता है फर्स्ट लेसन वाले को, तभी उसका दूसरे दिन उस वाले पर्सन को दूसरी ईमेल जाए जो कि आपकी सेकंड लेसन की है, ठीक है। अगर नहीं ओपन करता तो वो ईमेल ना जाए दूसरी वाली, वो अभी वेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मैनुअली नहीं करोगे, पूरा ऑटोमेशन चलेगा इसमें। आपने सिर्फ एक बार सेटिंग करके रखनी है, सीक्वेंस ऑफ ईमेल बना के रखा है, उनके बीच में आपने एक फनल क्रिएट करके रखा है कि वहां से अगर कोई ओपन करता है ईमेल को, पर्टिकुलर किसी लिंक पे क्लिक करता है, तभी उसको दूसरी वाली ईमेल जाए, नहीं तो नहीं जाए, ठीक है। अगर ओपन ही नहीं कर रहा ईमेल को, आपके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा आपके कस्टमर का, तो आप एक उसको दूसरी ईमेल बना के रखिए, जो उससे कुछ डिस्कशन ईमेल है, या फिर आपने कुछ अपने प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस उसमें दे रखा है, सर्विसेज का अवेयरनेस दे रखा है, वो वहां पे उसको चली जाए। या फिर उसको क्या करोगे, आप एड के थ्रू टारगेट करोगे। कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे, आप कोई ऐप मान लो इंस्टॉल करते हो, एंड आप उसको यूज नहीं करते काफी टाइम तक, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेते जाके, तो आपने देखा होगा कई बार नोटिफिकेशन में, जैसे पुश नोटिफिकेशन हो गया, या एड के थ्रू आपको वहां पे जो ऐप का बेसिकली ओवरव्यू है, या फिर जो जो फीचर्स उसमें है उसका ऐड दिखता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको टारगेट कर लिया कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इसीलिए वो आपको ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये है बेसिकली पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, यस यू कैन से, और ईमेल मार्केटिंग। देख रहे हो वहां पे आपके अपने कस्टमर्स को आप रिटेन करके रख सकते हो, ठीक है। मेथड्स बहुत सारे हैं जिनको आप यूज करोगे, डिजिटल चैनल्स के थ्रू आप मेथड्स कोई भी यूज कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एड वाला मेथड आप यूज कर सकते हो, एड दिखाना किसी को, ठीक है। ऑर्गेनिक वे आप यूज कर सकते हो, आप रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स दैट यू कैन यूज, ठीक है। देन ई कॉमर्स ऑब्वियसली इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट ऑनलाइन बना के आप वहां प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, और वहां से आपको जो भी बेसिकली आपका बिजनेस है वहां से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपने अभी देखा लॉकडाउन के टाइम में एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, ठीक है। इवन ट्रेनिंग क्लासेस सब कुछ ऑनलाइन हो गया, स्कूल्स तक ने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया, राइट। तो वो क्या है बेसिकली कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली यूज करना। तो व्हाई कांट वी यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सेल अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, बिल्कुल जैसे ई कॉमर्स कंपनीज करती हैं, राइट। तो यू कैन ऑल्सो सेल योर प्रोडक्ट सर्विसेज ऑनलाइन। अगर आप एज अ फ्रीलांसर हो, तो एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है। आप अपने डिजिटल चैनल लेसन्स बना के, डिजिटल कोर्स बना के आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, राइट। जो भी स्किल आपके अंदर है, मैं ये नहीं कह रही डिजिटल मार्केटिंग
आप डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर हो या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, तो डिजिटल मार्केटिंग को ही आपको डिजिटली प्रमोट करना है, सेल करना है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ताकि जो भी स्किल है आपके अंदर, आप डिजिटली उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी है आपका। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की, कि डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स, और इनको आप देखना भी रियल टाइम में एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स जो है। देखो, पहला ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो वीडियोस आर रियली ऑन बूम। ठीक है, जैसे टिकटॉक जब से बैन हुआ, तब से आपने देखा इंस्टाग्राम ने क्या किया, अपना रील्स शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम रील्स का ऑप्शन आप देखते होगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब वीडियोस आ गई यूट्यूब शॉर्ट्स पे, राइट। तो और आप भी देख रहे होगे, जो भी ब्रांड है वो अपना प्रमोशन अगर करती है तो माइक्रो वीडियोस बनाती है। ठीक है, प्रोमो वीडियो जिसको हम बोलते हैं। फाइन, इफ यू सी अवर यूट्यूब चैनल सीक्यूएस का, या फिर हमारा पेज आप देखोगे फेसबुक का पेज, तो वहां पे भी हमारी बहुत सारी माइक्रो वीडियोस आपको देखने मिलेंगी, फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉर टैली के लिए बहुत सारी माइक्रो वीडियोस आपको मिलेंगे। मैं आपको लिंक बाद में शेयर कर दूंगी फेसबुक का, सीक्वेंस का फेसबुक का पेज। यू कैन गो देयर एंड सी द वे वी आर डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग फॉर आवर इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहां से आप देख लेना। तो माइक्रो वीडियोस इज ऑन बूम, जो कि आप देख सकते हो कि ट्रेंड में है अभी। ठीक है, देन लाइव सेशंस एंड वेबिनार्स, बिल्कुल है। अभी देखो, अभी क्या है, हम लाइव सेशन ही तो कर रहे हैं, लाइव वेबिनार ही तो हमारा चल रहा है, राइट। तो सेमिनार्स था, ठीक है, जब तक लॉकडाउन नहीं था, सेमिनार्स वाज लाइक कि हाँ सेमिनार होना है, बट नाउ एवरीथिंग इज इन ऑन लाइव। ठीक है, तो लाइव सेशंस हो गया, वेबिनार्स आपका, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली यूट्यूब पे अगर आप देखो, पहले के कंपैरिजन में, आई डोंट नो यू हैव रियलाइज्ड इट और नॉट, पहले आप यूट्यूब चैनल पे जैसे वीडियोस देखते थे, वहां पे ऐड आपको कम रन होते हुए दिखते होंगे, वीडियो के बीच में या शुरू में या लास्ट में। बट अगर अभी रियलाइज करना आप, यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उनमें ऐड अब काफी दिखने लग गए हैं। क्योंकि क्या है, माइक्रो जो वीडियो है, वीडियो का टाइम है, लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। अब जब प्रमोट करेंगे तो वो वीडियो कहाँ दिखेगी, ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल की वीडियोस में, राइट। तो यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट बहुत इंक्रीज हो रहा है अभी, और लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट इज इंक्रीजिंग। अगर मैं फोर्थ ट्रेंड आपको बताऊं, दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब देखो, आपको अगर आप सोचो कि आप चाहते हो आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक आए, लोग उसको पढ़ें, आपका कोई भी कंटेंट है उसको पढ़ें या फिर वीडियो को देखें, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा कंटेंट जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो आपने खुद से क्रिएट किया हो, बनाया हो, ऐसा नहीं किसी बॉट के थ्रू आप लिखवा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे आपके कंटेंट राइटिंग टूल्स भी होते हैं, बॉट्स होते हैं जो वो कंटेंट लिख के देते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक कंटेंट बॉट लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड या रीडेबल नहीं होगा, रीडेबिलिटी इशू कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो यूजर जनरेटेड कंटेंट आप सोचो कि आप थोड़ा सा उसमें कुछ इंफोग्राफिक्स डाल रहे हो, ठीक है, कुछ उसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस डाल रहे हो, खुद उसमें आप कुछ अपने स्क्रीनशॉट्स लगा के डाल रहे हो। क्योंकि मोस्टली इफ आई गिव माय एग्जांपल, मेरे स्टूडेंट्स जो मैं क्लास में जो भी लेक्चर लेती हूँ, कवर कराती हूँ, हमेशा उसमें मैं मोर देन 80% जो कंटेंट होता है वो मेरा होता है। मैं पहले पूरा सेशन का जो बेसिकली कंटेंट है वो तैयार करती हूँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के, अपने खुद के नोट्स बच्चे को लिख के मैं खुद देती हूँ, क्योंकि इट्स मोर रियल। ठीक है, तो यूजर जनरेटेड कंटेंट आपको बनाना है। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, बिल्कुल ये तो है, आप देख रहे हो लाइव चैट बॉट्स हैं, एफबी मैसेंजर अगर आप देखो, फेसबुक मैसेंजर, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस में भी अगर आप लोग यूज करते हो तो यू कैन ऑल्सो रियलाइज व्हाट्सएप बिजनेस में भी वहाँ ऑप्शन आता है आपका ऑटोमेटेड मैसेजिंग टूल्स का। इसके थ्रू आप क्विक मैसेज जो है वहाँ सेट कर सकते हो, आप अभी मैसेज वहाँ सेट कर सकते हो, आप मल्टीपल क्वेश्चंस विद आंसर्स वहाँ सेट करके रख सकते हो, ताकि कस्टमर्स अपना वहाँ पे जो भी इसकी क्वेरी हो वो क्वेश्चन में से सिलेक्ट करे और उसको इंस्टेंट क्या वो आंसर चला जाए। ठीक है, तो चैट बॉट्स अगर आप देख लो तो कन्वर्सेशनल मार्केटिंग इज ऑन ट्रेंड इन 2021। ठीक है, आगे भी यही रहेगा, देखना आप। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बिल्कुल ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एंड देन जीरो क्लिक सर्च। ठीक है, जीरो क्लिक सर्च बेसिकली क्या रहता है आपका, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इस कीवर्ड पे
अगर आप देखो यहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं एंड आई कैन सी सम रिजल्ट ओवर हियर। ठीक है, एक डेफिनेशन मुझे मिल गई डिजिटल मार्केटिंग की। एंड अब यहाँ पे देख रहे हो कि विदाउट क्लिकिंग, मतलब कोई भी यूजर ने क्लिक नहीं किया और यहीं से उसको एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये क्या है, एक रैंकिंग फैक्टर है। मतलब जब आपका कंटेंट यहाँ इस तरह से आने लगे, और ये कंटेंट पता है किसका आया, यह है मार्केटो। मतलब इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है डिजिटल मार्केटिंग पे, उसका कुछ पार्ट, मतलब जो इन्होंने ब्लॉग में मेंशन किया था कुछ पार्ट, वो यहाँ पे रैंक कर रहा है। सो नाउ डिजिटल मार्केटर्स और एसईओ एक्सपर्ट्स विल वर्क ऑन दैट फीचर कि हर एक किसी की वेबसाइट में इस तरह से कंटेंट अगर 0 क्लिक सर्च पर रैंक करने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली देयर वेबसाइट विल बी रैंकिंग ऑन नंबर 1 फॉर सर्टेन कीवर्ड्स। तो ये क्या है, कीवर्ड्स है। तो 0 क्लिक सर्च पे अब डिजिटल मार्केटर्स बहुत काम करेंगे, जिसकी वेबसाइट नहीं भी रैंक कर रही है 0 क्लिक पे। तो ठीक है, एंड देन वॉइस सर्च ऑब्वियसली यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, एलेक्सा हो गया, गूगल वॉइस असिस्टेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो वॉइस सर्च डिवाइसेस है वो इंक्रीज होंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये आप मान के चलो 2023 तक एवरी इंडिविजुअल विल हैव देयर ऑन वॉइस असिस्टेंट डिवाइस, बिल्कुल उनके पास होगा ही होगा। ठीक है, तो एलेक्सा है, अगर आप देखो गूगल पे ही आप ट्राई करके देखना, इफ यू डोंट हैव एलेक्सा नो इश्यूज। तो गूगल पे जब आप देखोगे तो वहां पे आप वॉइस सर्च करोगे, इवन इफ यू सर्च फॉर समथिंग थ्रू योर वॉइस, तो वहां पे आपको रिजल्ट्स वैसे ही दिखाएगा जो रिजल्ट्स देखो यहाँ पे हमने टाइप किया, जो रिजल्ट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइस असिस्टेंट्स का भी काफी ज्यादा यहाँ पे बूम पर है, ये ट्रेंड में है। देन लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल गाइस लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर मैं बात करूं तो नाउ एडवर्टाइजमेंट इज कॉस्टली। ठीक है, आपकी 500 मिनिमम है पर डे का, अगर आप लिंक्डइन पे कोई एड रन करते हो। सो 500 इज द मिनिमम कॉस्ट ऑन लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट ना राइट नाउ। बट हो सकता है क्योंकि अभी क्या है, प्रोफेशनल्स काफी यूज कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन की बात करो, और लॉकडाउन के टाइम में लिंक्डइन काफी यूज हुआ है, लोगों ने यूज किया है लिंक्डइन को। तो लिंक्डइन जो है यूज किया है, अगर आप देखो तो लिंक्डइन पे आप एड्स, अगर इफ आई शो यू द एड्स ऑन लिंक्डइन, लेट मी ओपन माय प्रोफाइल देन आई कैन शो यू। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो व्हाट यू कैन सी, वेट फॉर अ मोमेंट, होम पे चलते हैं। तो यहाँ से यू कैन सी, अगर मुझे कोई एड दिखता है, ऑब्वियसली वी कैन सी सम एड्स ओवर हियर। यहाँ पे राइट कॉर्नर में भी हमें एड्स दिखते हैं, बट इट इज नॉट हियर राइट नाउ। यहाँ पे देखो ये एड, अगर आप देखो दिस इज प्रमोटेड इज रिटन ओवर हियर। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एड रन कर रखा है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे पहले इतने एड्स आपको नहीं दिखते होंगे लिंक्डइन पे, बट नाउ अ डेज हर एक कोई चाहता है एक प्रोफेशनल जो ऑडियंस है उनसे कनेक्शन मिले। ठीक है, और लिंक्डइन पे अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जो कंटेंट है, बहुत ज्यादा जो आपसे रेलिवेंट चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। इवन जॉब एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी अगर आप देखो तो आई वुड रिकमेंड कि naukri.com तो है ही है, मतलब वो तो जॉब साइट, जो जॉब पोर्टल साइट है ही है। आप यहाँ पे भी आके काफी कुछ अपनी प्रोफाइल से स्ट्रॉन्ग, मतलब अपनी प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग करके क्या कर सकते हो, जॉब ऑफर्स आपके पास आने लग जाएंगे। इवन if you see my profile, तो yes I have worked on my profile। so यहाँ पे आप देखो बिल्कुल एक जो प्रोफाइल, एक शॉर्ट रिज्यूमे भी कोई मेरा यहाँ से देख सकता है कि I have connected my resume and all, and you can see 500 plus connection। I have attached my resume in featured some certificates over here। so your LinkedIn profile is really plays a very vital role in your कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके पास आती हैं, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग में, तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, जो भी आपके सर्टिफिकेशंस वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। जो भी कंपनी का एचआर है या जो भी दे आर लुकिंग फॉर द डिजिटल मार्केटर, दे कैन डायरेक्टली चेक योर प्रोफाइल, या फिर जो भी प्रोफाइल के लिए वो सिलेक्ट कर रहे हैं, दे कैन डायरेक्टली चेक योर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हियर। लाइक इफ दे वांट टू चेक माय कंटेंट मार्केटिंग वाला सर्टिफिकेट, व्हाट दे कैन डू, उनको मुझे अप्रोच करना नहीं पड़ेगा, दे कैन डायरेक्टली सी माय क्रेडेंशियल्स फ्रॉम हियर। मतलब जो भी मेरा सर्टिफिकेट है वो यहाँ से देख सकते हैं वेदर इट इज वैलिड और नॉट, राइट। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, ताकि अपनी स्किल्स वगैरह आपको ऐड करनी है, देयर शुड बी एंडोर्समेंट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई यूज टू गेट 3 or 4 प्रपोजल्स एवरी वीक रिगार्डिंग सम जॉब्स, ठीक है। अब देखोगे आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बहुत मैटर करती है, फाइन। तो मुझे वीक में 3-4 ऑफर्स यहाँ से आते हैं बेसिकली, बट या आई एम हैप्पी विद सीक्यूएस बिकॉज it's very good digital marketing, or I would say the new age career courses institute जो provide करता है trainings basically, and here our main target is to provide the best quality of training or services to our students. So we can see that. Okay, so let's just come back. Okay, so LinkedIn advertisement यहाँ से increase होगा, and then last ये हमारा जो है अभी इवन हमारे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बट मैंने इतने मेंशन नहीं किए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यू कैन सी द लास्ट ट्रेंड इज वोकल फॉर लोकल, ठीक है। ये हमारा अभी कैंपेन भी था जो पीएम मोदी ने जो किया था अभी, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। मतलब आपका जो लोकल लिस्टिंग है उसको आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। लोकल लिस्टिंग मीन्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे, जैसे कोई भी कीवर्ड है हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर या कोई भी हमने सर्च किया, यहाँ पे अगर आप देखो तो लोकली मतलब आपके लोकल में जो यहाँ लिस्टिंग्स आ रही हैं ये बहुत मैटर करती हैं। और आपको इवन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है या फिर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप अपना लोकल लिस्टिंग तो एटलीस्ट कर सकते हो। जो लोकल का जो बिजनेस है वो आपके पास तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकली आप क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। इवन गाइस देयर इज वन मोर थिंग, गूगल कार्ड कुछ टाइम पहले ही चला था ये लॉकडाउन के बाद, बट इट इज अ मोबाइल बेस्ड थिंग के अभी आपका डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप मोबाइल पे जाके सर्च करोगे गूगल कार्ड, तो देखना वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना अपने नेम से या फिर कोई किसी कीवर्ड के थ्रू, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है ना, वैसे किसी कीवर्ड के थ्रू जो आपका प्रोफेशन है उसको लेके एक अपना कार्ड बना सकते हो, ठीक है। वो कार्ड बनाओगे तो उसमें आप अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब बायो जो होता है वो आप दे सकते हो। आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो उनके लिंक भी आप वहाँ पे दे सकते हो, जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, आपका सपोज इंस्टाग्राम का लिंक, अकाउंट का लिंक है, यूजर नेम है वो आप दे सकते हो, यूट्यूब चैनल है कोई उसका लिंक दे सकते हो, वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, राइट। तो आप एक गूगल कार्ड भी अपना बना सकते हो। व्हेन समवन इज लुकिंग फॉर योर नेम या फिर वहाँ पे कोई कीवर्ड से, तो वो कार्ड वहाँ पे दिखेगा बेसिकली, सो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, गेट इन टच विद यू। तो आज ट्राई करना, इसको गूगल कार्ड के नाम से है ये, ठीक है। मोबाइल पे आप बना लोगे प्रोफाइल इजिली, फाइन। दूसरा ये गूगल माई बिजनेस से होता है कि गूगल में आपने क्या करना है, अपने आप को लिस्ट कराना है, ठीक है। तो दैट इज वोकल फॉर लोकल, ठीक है। डन, समझ आया इतना यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले? नो मैम। परफेक्ट, ठीक है। सो अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली वो होती क्या है। तो देखो, आपका जॉब प्रोफाइल्स तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखी हैं। इफ आई टॉक अबाउट, इफ यू आर एक्सपर्ट इन एवरी डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं डोमेन अभी बताऊंगी आपको, मॉड्यूल्स बेसिकली कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप एक्सपर्ट हो सारे मॉड्यूल्स में, देन यू विल बी वर्किंग एज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। वंस यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 years, तो आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी काम कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर गुड इन कंटेंट राइटिंग, प्लानिंग एंड प्रमोशन, तो आप एज अ वेब कंटेंट मैनेजर या वेब कंटेंट एग्जीक्यूटिव वहां पे काम कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर गुड इन एसईओ एनालिस्ट, ठीक है,
आई मीन एसईओ में आप अच्छे हो तो एसईओ एनालिस्ट की पोजीशन पे आप काम कर सकते हो, एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन पे आप काम कर सकते हो। देन सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, ठीक है, अगर सोशल मीडिया में आप अच्छे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छे हो, ठीक है, आपको लगता है कि नो यू आर गुड इन हैंडलिंग द सोशल मीडिया अकाउंट्स और आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से बना सकते हो, व्हाट यू कैन डू, you can work as a social media specialist or social media manager. There are so many different positions according to the company, depend करता है, ठीक है। ऑनलाइन लीड्स मैनेजर की तरह आप काम कर सकते हो। अब जैसे कि आप जैसे अलग पोजीशन पे हायर हुए, आपको कंपनी ने बोला कि आप सिर्फ हमें जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी लीड सिर्फ जनरेट करके दो, वेदर इट्स थ्रू ऑर्गेनिक तरीके से या फिर फेसबुक से या गूगल से या जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस मीडियम से सिर्फ हमें लीड्स ला के दो। लीड्स मतलब कोई एक कस्टमर की या यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन नंबर या फिर एड्रेस या जो भी वट एवर यू हैव द रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो लीड क्या होगा, एक पोटेंशियल कस्टमर की लीड। आप अगर जानते हो कि वो वेज मेथड्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो आप काम कर सकते हो ऑनलाइन लीड्स मैनेजर की तरह, ठीक है। इफ यू आर गुड इन ईमेल मार्केटिंग तो वहां पे आप ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम कर सकते हो, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, ऑनलाइन पूरा स्विच हो रही हैं, तो वो ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रही है, तो ऑब्वियसली ये किसका काम है, ई कॉमर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस काम को करते हैं, ठीक है। डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट मतलब पूरा जो कंटेंट प्लान हो रहा है बेसिकली, वो उसके लिए पूरे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे जो जो कंटेंट शेयर होना है, जो भी कंटेंट कैलेंडर बनना है, वो पूरा कुछ आप डिसाइड करते हो, ठीक है। वेब एनालिस्ट, वेब एनालिस्ट इज एक्चुअली द टूल्स, ठीक है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं आपके जो आप पढ़ते हो, जैसे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हो गए आपके, आपके ऐसे टूल्स हो गए जो आप ये डिसाइड करो कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है, कौन से वाले पेज पे अभी विजिटर्स ज्यादा हैं, ठीक है, राइट नाउ अभी कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कौन से डे पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, ठीक है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है, आपका जो यूजर है उसका बिहेवियर क्या है, वो बेसिकली किस इंटरेस्ट का है, क्या सर्च करके आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग टूल्स होते हैं एंड यू विल बी लर्निंग 50 प्लस टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, यस आई एम राइट, 50 प्लस। तो उन टूल्स को भी मैनेज करने के लिए अलग से एक एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर उन टूल्स को ही मैनेज आप करना सीखे तो आप एज अ वेब एनालिस्ट या गूगल एनालिटिक्स उस पोजीशन पे आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर मतलब अब देखो आपकी बिजनेस का प्रेजेंस ऑनलाइन है, राइट, तो वहां पे अपनी बिजनेस को आपको उसकी रेपुटेशन जो है उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई रेटिंग्स आपको दे रहा है तो क्या रेटिंग्स दे रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो क्या रीजन है, आप उसको विद इन विच टाइम फ्रेम आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, विद इन 24 आवर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके कैसे टच में आ रहे हो, कैसे वो एडिट करा रहे हो रिव्यू, ठीक है, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स ऑल अंडर दी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर, ठीक है, वो सारी चीजें दिखता है। कंटेंट आपका क्या जा रहा है, मतलब लोग उस कंटेंट पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर दिखता है, ठीक है। देन गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट मतलब गूगल एड्स में आप अच्छे हो, जैसे गूगल एड्स आप बहुत अच्छे से डिजाइन करना जानते हो, चाहे वो आपका सर्च एड हो, डिस्प्ले एड, वीडियो एड या फिर आपका शॉपिंग एड, तो वो होता है आपका गूगल एड्स में, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपकी जॉब से एक जो मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको बताया है वो गूगल एड्स का है, फाइन। देन आपका आ जाता है करियर्स, यस वी आर टॉकिंग अबाउट करियर्स, बट यहाँ पे आता है एज अ फ्रीलांसर। अगर आपको जॉब नहीं करनी सपोज एंड इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन फ्रीलांसिंग, तो वो आप कैसे करते हो, ठीक है। तो देखो यू कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, ठीक है, प्रोफेशनल ब्लॉगर मीन्स यू आर गुड एट राइटिंग एंड यू हैव चूजन वन टॉपिक और वहां से एक कोई पर्टिकुलर नीश कैटेगरी आपने डिसाइड कर रखी है दैट यू विल बी राइटिंग ब्लॉग्स ऑन टूर एंड ट्रेवल्स, या फूड्स पे आप लिखोगे या कोई कल्चर पे लिखोगे या मॉन्यूमेंट्स पे लिखोगे या टेक्निकल ब्लॉग्स बनाओगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वहां पे आप एज अ ब्लॉगर काम कर सकते हो, अपने कंटेंट लिखो। अब मुझसे आप बोलोगे मैम ऐसे तो हम ब्लॉग्स लिखेंगे, चलो ठीक है, बट हमारा फायदा क्यों होगा, हम ब्लॉग्स क्यों लिखें, राइटिंग स्किल्स हैं दैट्स ओके, बट फ्री में हम कोई काम क्यों करें, हमें बेनिफिट यहाँ से क्या होगा। तो देखो बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आपको प्रमोट करना है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना तो पड़ेगा, राइट। अपना कंटेंट लिखा, आपने ब्लॉग लिखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड देन वहां पे लिंक लगाया, ठीक है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग से आप अर्न करोगे।
दूसरा जो यहाँ पे आपका मेथड है अर्निंग का ब्लॉगिंग से, वो है एडसेंस। अब देखो ये एडसेंस क्या होता है, जैसे गूगल एड्स होता है ना, गूगल एड्स में क्या करते हो आप, अगर आपको कोई एड बनाना है तो यू विल बी वर्किंग एज एडवर्टाइजर, मतलब आप अपना एड बना रहे हो, ठीक है, वहां पे आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया है उस एड को दिखाने के लिए, ठीक है। बट एडसेंस क्या होगा, अब जो एड बनाया आपने, ठीक है, एज एन एडवर्टाइजर जो एड बनाया, वो कोई ना कोई लोकेशन पर दिखेगा, ठीक है, गूगल डिसाइड करेगा कि वो कहाँ दिखाना है, तो गूगल उस एड को कौन सी साइट पे दिखाता है, जहाँ पे एडसेंस अप्रूवल ले रखा होता है। तो वो ब्लॉगर्स ही तो होंगे, वो वेबसाइट जिनकी वेबसाइट्स होंगी वही तो होंगे, राइट। तो आपने अगर एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है तो दूसरों के एड्स आपकी वेबसाइट पे दिखेंगे, ठीक है, और वहां पे एड दिखेंगे तो आपको वहां पे अर्निंग होगी। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, आप लिंक नहीं कर पाओगे इसको। कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे W3 स्कूल्स वाली वेबसाइट लेते हैं, ओके। तो देखो इसके फ्रंट पेज पे कोई ऐड नहीं है, बट अगर मैं इसके कोई और पेज पे जाती हूँ तो व्हाट यू कैन सी सम एड्स। ये देखो यहाँ पे HostGator का ऐड दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये आपको लिंक्डइन का एड्स दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। और हम थोड़ा नीचे आते हैं, फिर से हमें HostGator का ऐड दिखा, एंड हियर वी कैन अगेन सी द एड ऑफ HostGator, ठीक है। यहाँ पे देखो ये HostGator और यहाँ पे एक और ऐड हमें दिख रहा है, ठीक है। सो सी, अब यहाँ पे ऐड हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो एडवर्टाइजर कौन कौन हो गए, जिन्होंने ऐड बनाया है अपना, HostGator हो गया, ठीक है, और जो हमने एड्स देखे लिंक्डइन हो गया, ये इन्होंने क्या ऐड बना रखा है। लेकिन ये किसकी साइट पे दिख रहे हैं, ये साइट पे दिख रहे हैं W3 स्कूल्स की साइट पे दिख रहे हैं, मतलब पब्लिशर कौन हो गया, W3 स्कूल्स, और एडसेंस का अप्रूवल किसने ले रखा है, W3 स्कूल्स ने, इसीलिए इसकी साइट पे ये एड्स दिख रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे ये अर्निंग हो रही है, फ्री में ऐड नहीं दिखा रहा गाइस। अगर मान लो 100 रुपए लगाए हैं HostGator, या फिर जो भी बजट है बेसिकली स्पेंड किया है इन लोगों ने, तो गूगल ने मान लो 100 रुपीज स्पेंड किए, तो गूगल ने अपने पास 40 रुपीज रखे हैं, और जो 60 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया है जहां जहां पे जिस जिस साइट्स पे ये एड रन हो रहा है, ठीक है। मैंने एक रफ आइडिया आपको बताया है, ऑल्दो ऐसा नहीं होता, वो अमाउंट बहुत क्लिक पे डिपेंड होता है, CPC पे डिपेंड होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो डेप्थ प्रोसेस है थोड़ा सा, बट हाँ इतना समझ लो, एड्स गूगल एड्स अकाउंट होता है जिससे आप ऐड बनाओगे, आप एडवर्टाइजर होगे वहां पे। एडसेंस क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखते हैं इस अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो जो ब्लॉगर्स हैं, जो वेबसाइट जिसकी है, वो अपना ऐड यहाँ पे दिखा के क्या कर सकते हैं, वो वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, फाइन। तो यू कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। So through professional blogging, what you can do, you can start earning money from AdSense. Even affiliate marketing आप अपना Facebook पेज से भी कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पेज पे प्रोडक्ट आप लिस्ट करके मतलब पोस्ट करके, वहां से अगर कोई परचेज करता है देन यू विल गेट % ऑफ कमीशन, जो भी उस कैटेगरी का रहेगा, ठीक। ये हो जाता है आपका, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन फ्रीलांसिंग सर्विसेज। मतलब फ्रीलांसिंग सर्विस इन द सेंस, जैसे कि आप मान लो यू वांट कि मैम मेरी जॉब है एक जगह, बट आई डोंट वांट टू डू जॉब, या फिर मुझे ये ब्लॉगिंग भी नहीं करना, व्हाट आई वांट कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत अच्छे से हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे हो, मैं उनके लिए सिर्फ काम करूँ, ठीक है। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स जो करूँ वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे करूँ, बिल्कुल यू कैन डू इट। आपके ऑफलाइन ऑफ क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे ऑनलाइन साइट्स बहुत सारी हैं आपकी, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स ऑन विच यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, ऑडिट फाइल करोगे, वहाँ पे अपने अगर प्रोजेक्ट पहले किए हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट वहाँ सबमिट करोगे, ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक करेगी, अगर कोई सर्च करेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रीलांसर, तो योर प्रोफाइल विल रैंक ओवर देयर, और वहां से फिर वो आपको चूज करेंगे एंड दे स्टार्ट गिविंग यू द प्रोजेक्ट, सो वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसिंग सर्विसेज, ठीक है। यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म ऑल्सो। अब देखो जैसे कि मान लो आपका ग्रुप है फ्रेंड्स का, एंड 2 ऑफ देम आर गुड इन SEO में अच्छे हैं, 2 लोग हैं सोशल मीडिया में अच्छे हैं, 2 लोग हैं गूगल एड्स में हैं, 2 लोग सपोज लीड जनरेशन में अच्छे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे आपकी पूरी टीम है, तो एक एक 2 लोग एक एक मॉड्यूल में, 2 मॉड्यूल में बहुत एक्सपर्ट है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट योर टीम,
फिर आप क्या कर सकते हो, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वहां पे अपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली देखते हैं कि एक ही एजेंसी हो जो उनका सारा काम संभाले, मोस्टली एमएनसी करता है, ठीक है। तो एमएनसी को आप टारगेट कर सकते हो और वहां से फिर अपना जो भी आपका प्रपोजल है, जो भी आपके प्लान्स हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो भी रहेंगे वो आप उनको डिस्कस कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर देम, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। इवन अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, यू नो नीड टू हायर समवन, आप खुद से वो चीजें संभाल सकते हो। या फिर अगर आपने हायर भी किया है बट यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स कि कैसे होता है ये डिजिटल मार्केटिंग में पूरा प्रोसीजर, तो यू कैन गाइड देम, ठीक है। वो गलत नहीं करेंगे उस टाइम पे। फाइन, देन बिकमिंग अ यूट्यूबर, ऑब्वियसली बिल्कुल। देखो अगर आप इफ यू आर गुड इन वीडियो क्रिएशन, ठीक है, अगर वीडियो क्रिएट करने में, वीडियो मेकिंग में आप अच्छे हो और आप चाहते हो कि अपना यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करो, वहां से अर्निंग करो, यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दोगे आप, वहां से आपकी जो वीडियोस हैं वो रैंक करना स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब ऑप्टिमाइज करोगे और उसके बाद फिर कोई भी अगर आपको सर्च करेगा आपकी वीडियोस वहां रैंक करेगी, फिर आप एडसेंस का अप्रूवल लोगे, मतलब मोनेटाइजेशन। जैसे हमने वेबसाइट को मोनेटाइज किया था, ब्लॉग को मोनेटाइज किया था, वैसे ही हम यूट्यूब को भी क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। यूट्यूब को मोनेटाइज करेंगे, वहां से फिर हमारी भी वीडियोस में क्या होगा, एड्स रन होना शुरू हो जाएंगे, देन वी स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम देयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्कोप कितना ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग का। इवन आप जॉब भी कर सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो, ऑफलाइन क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन भी काम कर सकते हो, खुद एज अ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हो, ब्लॉगर काम कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे एड रन करा के वहां से अर्न कर सकते हो, एज अ यूट्यूबर आप काम कर सकते हो। इवन यहाँ पे अपनी कंपनी को भी आप देख सकते हो, इवन अपना पर्सनल ब्रांड भी वहां से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो बूम पर है, क्योंकि हर जगह डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है। हर जगह लोग चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वो जो है क्योंकि फंडास और जो स्ट्रैटेजीज हैं डिजिटल मार्केटिंग की वो आपके हर एक चीज में यूज होती हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। सो जल्दी से आप फटाफट से थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आप कवर क्या क्या करोगे। बेसिकली इन सीक्वेंस वी हैव 3 प्रोग्राम्स इन डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट इन सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो कि आपका आई थिंक ये 4 to 6 मंथ्स का रहता है आपका। एंड डिप्लोमा जो है वो पूरा आपका 1 ईयर का रहता है, बिकॉज इन दिस यू विल बी कवरिंग सर्टिफिकेशन में 20 मॉड्यूल्स और डिप्लोमा में आपके 42 मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आपके 65 मॉड्यूल्स हैं गाइस। इसका 1.5 years का रहता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट। एंड देन मॉड्यूलर प्रोग्राम्स, मॉड्यूलर होता है आपका शॉर्ट प्रोग्राम्स जो रहते हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया सिर्फ आपको सीखना है तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। एसईओ अगर सीखना है तो यू कैन गो फॉर दैट। गूगल एड्स हो गया, लीड जनरेशन, सेल्स फनल, मार्केटिंग ऑटोमेशन, तो वो अलग मॉड्यूलर प्रोग्राम्स होते हैं, फाइन। तो मैं कुछ जो मैंने नहीं कवर कराया वो मैं बस थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल अगर मैं बात करूँ मेन मॉड्यूल्स की, तो आपका ओवरव्यू रहता है, जैसे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। कुछ केस स्टडीज हम करेंगे, कुछ स्कोप बेनिफिट जो कि मैंने आपको मोस्टली आज कवर कराया है इसी टाइप का रहता है, बट केस स्टडीज यहाँ पे आ जाता है बिल्कुल कि जिन बिजनेस ने ऑनलाइन स्विच किया उनका क्या रेवेन्यू गया, क्या सारी चीजें, तो बिल्कुल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरा केस स्टडीज के साथ देते हैं, राइट। सेकेंड मॉड्यूल गाइस आपका आता है कि आप वेबसाइट क्रिएट करना सीखते हो, ठीक है, वेबसाइट फंडामेंटल्स, वो भी वर्डप्रेस पे। सो नो नीड टू वरी अबाउट, जिसका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं भी है, कोडिंग जिसको नहीं भी आती, वो भी अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ब्लॉगिंग मतलब आप ब्लॉग्स क्रिएट करना सीखते हो, आपने ब्लॉग्स कैसे लिखोगे, ठीक है, पूरा ब्लॉग राइटिंग से लेके हर एक चीज तक, प्रमोशन तक आप यहाँ पे सीखते हो, ठीक है। एसईओ मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आपको अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या जो भी कंटेंट है, चाहे वो इमेज ही क्यों ना हो, चाहे वो वीडियो ही क्यों ना हो, आप गूगल में उसको कैसे रैंक कराओगे, ठीक है, दैट कम्स अंडर एसईओ। एंड देन गूगल माई बिजनेस, मैंने आपको बताया जो मैप के फॉर्म में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो लोकल रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज थ्रू गूगल माई बिजनेस, ठीक है। देन डिजिटल एनालिटिक्स, इसमें आपके टूल्स कवर होंगे, 50+ टूल्स आप यहाँ पे कवर करते हो, जैसे कि एसईओ के कौन कौन से टूल्स हैं, एसईओ ऑडिट के कौन कौन से टूल्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स आप पढ़ोगे, और आप इसमें पढ़ोगे कीवर्ड रिसर्च के कुछ टूल्स होते हैं, तो पूरे टूल्स आप इसमें पढ़ते हो,
ओके। एंड देन कंट्रोल पैनल, ऑब्वियसली आपको अपनी वेबसाइट को मैनेज करना है, तो आपको कंट्रोल पैनल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अपनी वेबसाइट का बैकअप लेके रखना है, कभी भी कोई इश्यू होता है तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल की जरूरत पड़ेगी। आपको अपनी वेबसाइट मतलब जो डोमेन नेम है आपका वेबसाइट का, उसके रिगार्डिंग आपको एक प्रोफेशनल ईमेल बनानी है, तो फिर आपको कंट्रोल पैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। तो पूरा कंट्रोल पैनल इसमें होता है आपका। एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने आपको बता दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग रहेगा। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, सब रहेंगे। ऑप्टिमाइजेशन प्लस मार्केटिंग दोनों पॉइंट इसमें रहते हैं आपके, ठीक है। देन कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशन रहेगा। ऑल्दो वी ऑल्सो कवर सम पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, नॉट दैट मच, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इज अ सेपरेट पूरा कोर्स अलग रहता है कंटेंट राइटिंग का। जरूरी नहीं है जो डिजिटल मार्केटर हो उसको कंटेंट राइट करना भी आता हो, राइट, बिकॉज कंटेंट राइटर्स आर डिफरेंट, अलग उनका रहता है। बट यस, दैट्स अ गुड पार्ट, गुड थिंग अगर आप कंटेंट भी आप राइट कर लेते हो तो। ओके, तो कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशंस रहेगा, आपका ईमेल मार्केटिंग रहेगा पूरा एडवांस लेवल का, ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, सीक्वेंसिंग, ऑटोमेशन एंड ऑल। गूगल एड्स रहेगा आपका, जितने भी टाइप के एड्स है, जैसे कि सर्च एड हो गया आपका, डिस्प्ले एड हो गया, शॉपिंग एड्स हो गया, वीडियो एड्स, मोबाइल एप्स के लिए डाला एड जो है, मतलब ऐप प्रमोशन वाले जो एड्स होते हैं वो आप बनाना सीखते हो, ठीक है। देन गूगल एडसेंस, मतलब आपको अर्निंग करनी है, आपने ब्लॉग लिखा है, आपने वेबसाइट बनाई है, वहां से आपको अर्निंग करनी है, देन यू विल गो फॉर गूगल एडसेंस, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केटिंग, मतलब आपने ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाओगे, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, आपका वहाँ पे पेमेंट गेटवेज आप कैसे लगाओगे, कैसे बनाओगे पेमेंट गेटवेज, ठीक है। और आप शिपिंग मेथड्स वगैरह कैसे लगाओगे लोकेशन ट्रैकिंग पे एंड ऑल, चेकआउट मेथड्स के जो चेकआउट पेज है, कार्ट पेज है, वो सब कैसे काम करेगा, पूरा जो ई कॉमर्स का एक लेआउट आता है ना, स्ट्रक्चर आता है, वो पूरा आप यहाँ पे सीखते हो, ठीक। देन एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है। इनबाउंड मार्केटिंग मतलब सेल्स फनल कैसे बनाते हो आप, वो आप सीखते हो। वीडियो मार्केटिंग आप सीखोगे, मतलब यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, यूट्यूब चैनल की जो आपकी वीडियोस हैं वो बेसिकली रैंक कैसे करेंगे, ठीक है। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन पूरा सीखते हो। फिर अपने यूट्यूब चैनल को आप मोनिटाइज कैसे करोगे, वो भी आप सीखते हो, राइट। एंड देन मोबाइल मार्केटिंग, क्योंकि देखो आजकल अगर मैं बात करूं 75% जो सर्चेस हो रही है इट्स थ्रू मोबाइल, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या एरर्स आ रहे हैं। आपका मोबाइल है, मोबाइल ऐप है सपोज, ठीक है, और आप मान लो वो एंड्रॉइड पे है, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो या फिर आप iOS के लिए बना रहे हो, तो वो बेसिकली रैंक करना चाहिए प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में, जैसे वेबसाइट हमारी रैंक करती है गूगल पे, वैसे ही ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे आपका मोबाइल ऐप भी सर्टेन कीवर्ड्स के लिए कैसे रैंक करेगा, वो आप प्रैक्टिकली सीखोगे सारी चीजें, ओके। देन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, रिव्यूज, रेटिंग्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। लीड जनरेशन, मतलब अपनी बिजनेस के लिए आप एक पोटेंशियल लीड कैसे जनरेट करके दोगे, राइट। एंड रीमार्केटिंग, मतलब बिल्कुल रीमार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हमें रिटेन करके रखना है, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। रीमार्केटिंग, उनको रीटारगेट हमें कैसे करना है, दैट इज अंडर रीमार्केटिंग, राइट। एंड देन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आपके रहेंगे, मतलब अगर एक मॉड्यूल आपने कंप्लीट किया है आफ्टर दैट आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वहां पे रहेगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेयर यू लाइक, ठीक। देन सीआरएम्स रहेंगे आपके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो भी टूल्स रहते हैं आपके कस्टमर के साथ, जो भी आपका इंटरेक्शन रहता है, एंगेजमेंट रहता है, क्या क्या टूल्स जो इंपॉर्टेंट है जो आपको मैनेज करने हैं अलग अलग डिजिटल चैनल्स पे और अलग अलग डिजिटल स्ट्रैटेजीज के थ्रू आपके टूल्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनिंग रहेगी, मतलब जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है या फिर बिफोर कंप्लीशन आपके 15-20 लेक्चर्स आपके हमारे जो प्रोफेशनल स्किल्स डिपार्टमेंट रहता है बेसिकली, जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराता है, उसके साथ आपका यहाँ पे क्लासेस रहती हैं, ठीक है, जो कि आपको रिज्यूमे राइटिंग वगैरह वो सारी चीजें बताते हैं, कैसे आप इंटरव्यू हैंडल करोगे, स्किल्स टेक्निकल तो यस आई एम देयर फॉर दैट, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह है वो आप कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे, तो वो आपका यहाँ पे रहते हैं सेशंस आपके, ठीक है। 10-15 सेशंस आपके रहेंगे। देन सर्टिफिकेट, मतलब वो रहेगा, ठीक है। तो आपके सेट जो मैंने अभी आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाया उसी तरह से होता है आपका, ठीक है।
एंड देन इट्स ऑल 100% प्रैक्टिकल रहेगा गाइस, इंडस्ट्री रेलिवेंट आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, डाउट सेशंस आपके चलते हैं, क्लासेस ऐसा नहीं है कि क्लासेस चल रही हैं बट आपके डाउट्स हैं, वो नहीं होता, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है। आपका थ्योरी यहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ पे कुछ कंटेंट ही थ्योरी का मिलेगा कि आपने स्टेप्स पढ़ ली, उसको फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। सो ऑल इज प्रैक्टिकल, फाइन। So guys, that's it for today's session. So any questions? Let me just pick questions if you have. Okay, Ria has asked the question, how much I can earn in a month if I choose this as a career. See, Ria, as a beginner, if I'll tell you that कि अगर आप जॉब में जाते हो कोई एक प्रोफाइल पे, जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो उसका एज अ बिगिनर आपका रहता है 18,000 से लेके 25,000 पर मंथ आपका, इफ यू प्लेस इन अ गुड कंपनी। अगर फ्रीलांसर करियर स्टार्ट करना है तो उसमें तो कोई आपका लिमिट ही नहीं होता कि आप कितना अर्न कर रहे हो, क्योंकि आपके अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, आपका आर्ली बेसिस पे वहाँ पे पेमेंट होता है, राइट। सो यू कैन सी इन डिजिटल मार्केटिंग करियर, आप जो है एज अ बिगिनर की बात करें तो 18 वहां से स्टार्टिंग है आपका, 18 से लेके 25,000 30,000 भी होता है इफ यू डायरेक्टली वर्क फॉर गूगल एड्स, तो वहां के लिए काफी ज्यादा अर्निंग होती है। एसईओ एक्सपर्ट अगर आप करोगे, क्योंकि एसईओ क्या है, मेन पिलर है आपका डिजिटल मार्केटिंग का, अगर डायरेक्ट आपका एसईओ एक्सपर्ट जॉब लगती है तो वहां पे आपकी अर्निंग काफी अच्छी होती है, 20,000 25 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आप मान के चल सकते हो, जो मिनिमम है, मिनिमम आपका 18,000 है एज अ बिगिनर, ठीक है। इवन पेड इंटर्नशिप भी हम आपकी शुरू करा देते हैं, जैसे आपका लास्ट क्लास कोर्स होता है, जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपकी पेड इंटर्नशिप हमारी कंपनी के एंड से ही होती है, वी हैव टाई अप विद सो मेनी कंपनीज, तो वहाँ की पेड इंटर्नशिप होती है। देन उसके बाद फिर आप जैसे 1 मंथ की इंटर्नशिप, 2 मंथ की पेड इंटर्नशिप करने के बाद आप यू कैन स्टार्ट योर जॉब। ओके, CPC इज कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, कोई डाउट है किसी का? Thank you, Yamini ma'am. You have done a lot of work. Your PowerPoint presentation was quite good and providing the lot of information to the students. Thank you. Even the students who are not aware of the terminologies of Google as well as internet, they will also get the benefit of this. Yeah. And I think there may be some question from YouTube section also. Okay. Urvashi? Yes, ma'am. Students had provided any data from YouTube? Ma'am, I'm checking it. Just a Please, second. please, Yeah. please check it. If there is any question from YouTube side. Yes. We'll pick that one also. Yeah, ma'am. Here. Yeah. Ma'am, there are no such questions from YouTube. No questions from No YouTube. questions. Okay. Yeah. Okay. Then thank you very much, Yamini ma'am. You have provided the information for the second time. First for the commerce student. Yeah. Right. And thanks to Urvashi ma'am, who has made all the arrangements and connect Yamini madam to provide the lecture and provide the information relating to traditional marketing as well as digital marketing to the students. My And- pleasure, ma'am. And the thank you to my team also, and claps to Mr. Sandeep, who has managed the live streaming in YouTube. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure that I give second time opportunity to speak for your college students on digital marketing, and really very fantastic. I really liked it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Wonderful lecture, and in that we come across so many new things about this technology. Thank you so much, sir. Prasant Prakash. Yeah. One of our team member. Yeah. Ma'am, I also want to say that the session was very, very fruitful. Even ma'am, Sushma ma'am rightly said that those who are not aware with the terminology, nowadays we are digitalized. Of course, everything is going on the virtual mode and so many things, blog writing, content writing, but even my vision is too much clear. So I can understand those are the students of this field
of course, they are enlightened today. Thank you so much, ma'am. And Yeah. thank you And so much. Welcome. one So student asked one more question. Yeah, that is ma'am, any relating to- free internship for digital marketing? This is okay. See, right now I need to check with the department. I'll definitely let you know. I'll definitely let Sushma ma'am know अगर कोई internship होगी, so I'll definitely please, let you please, know. ma'am. And even we have placement. I think that job placement also on 19th of March, I think. So I'll share your number, ma'am, to my placement department. They'll Okay. call to you. HR जो है, then they'll let you know कि अगर कोई होती है internship, so definitely Thank you you. can Thank you. inform to your Ma'am, students. ma'am, if there is any agency to get the placement of these students, मतलब कि इनको really बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. No issues, Please. ma'am. I'll definitely share your number with my HR or the placement department. They'll get in touch with you. Then you can get the good number of vacancies for your students. Thank you. Thank you. So nice of you. And thanks. It was Many really thanks. a good Many session. thanks.